Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Dear students, our next speaker have joined us. We have with us Miss Madhura Bagchi. Welcome you, ma'am. I, on behalf of WCTM family, welcomes you to the online orientation program. Thank you so much. Our pleasure, ma'am, to have you with us. Dear students, before ma'am shares her valuable experiences, let me give a brief introduction about ma'am. Ma'am is an NLP practitioner who uses her experience and skills to deliver inspiring results through program management, speaking keynotes, coaching, and facilitation. Presently, she is working as Global Learning Advisor at Genpact. She's a subject matter expert on talent management, change management, and L&D. She has diverse experience both in terms of industries and geographies. She is passionate about inclusive leadership, strategizing employee engagement, branding, and communication, which she infuses in all her projects wherever possible. She never misses an opportunity to nurture personal connection with every individual who comes in contact with her to create a positive and energetic mindset. We are very much delighted, ma'am, to have you with us, such a wonderful speaker. Dear ma'am, it's over to you. I would request you to guide our students on how to achieve success. What is the highway to success? Thank you so much, Radhaji. Firstly, it's an honor to be with all of you. And I was listening to the previous session, so I know that it's a very interesting day that the students are having so far. But my request to all of you will be, well, a good afternoon to all of you. My request to all of you will be, just like you all were talking so much during the break, I would like you to talk to me now during my session. Are you okay with that? Can you just put a thumbs up on with your emoticon so I know? Yes, ma'am. Perfect. Thank you so much. All right. So I will try to keep this session as interactive as possible. As Shraddhaji already told you, my name is Madhura, and I'm really, really happy to be here. So my purpose is not to necessarily give you a lot of gyan, but I want to try and see how much can I make it relevant for you. I can make it contextualized for what you're doing in your life, right? So feel free to ask me questions, feel free to stop me wherever you want, and feel free to share your mind as we go on the highway to success, because you've already come there. So tell me something. What's your definition of success? Can one or two of you tell me? You can write in the chat if you don't want to talk. What is your definition of success at this point in life? Make money. Make money. Okay. Yes, very important ingredient for success for sure. What else? Make fame. I'm sorry? Fame. Same. Okay. So money is the only motivator for you right now? Yes, ma'am. If money you have, then everything you got in your life. Okay, fantastic. So as you can see this picture, there's a man and there are lots of roads crisscrossing in front of him right now, right? So actually that's where you are. That's why you are, all of you are saying money, but honestly, money is the outcome of the success that you'll have, right? So imagine you're just sitting on a bed and doing nothing. Can pots of money land on your lap? Yes, no, maybe? Can it happen that you wake up one morning and money just lands on your lap? That is not going to happen, right? Money is going to come as a result of what you're going to be doing with your life. And that's exactly where you are right now. And your paradigm is going to shift. What does paradigm shift mean? For example, many years back, people used to think that the earth is flat. Did you know that? But then discoveries happened, and later on people got to know that no, the earth is not flat, the earth is round. Similarly, there was a time when men thought they couldn't fly, but then Wright brothers went and invented aeroplanes, and then we started flying, and today we are even going to space, right? So paradigm is nothing but what we think is our limit, and then when we get to know more and more and more, then the definition of what we thought is
the reality shifts and a new reality comes in your way. So the best part is right now you're in a situation in life where you have lots of paths ahead of you, but which highway to take is what you're actually working on. And one more advice for you will be, if you want to really succeed on this, highway or choosing the route, you can ask everyone and the answers you'll get will definitely confuse you. Yes or no? Does it happen that you ask for advice to 10 people and 10 people are giving you 10 different advice and then you don't know what to really do about the answer that you got? So Gaganpreet says, yes, right, ma'am. So yes, exactly, right? So there are times when we are asking everybody, we are getting too much of advice. And this is a problem in today's world. We live in a world of too much information, right? So you go to Google, you keep asking, you'll see different kinds of platforms where, people are asking tons of questions and you'll see completely conflicting answers on every platform. So if you ask everyone and you keep changing your mind every day, then life is going to be tough. But what is important is for you to know your strength, listen to everyone, but tailor make your plan. So you need to know yourself so very well that you completely understand what is it that awaits your success and make sure that you are going on that path, right? So don't make a wrong decision by considering every answer. Listen to everyone, but tailor make your own plan because nobody knows you better than yourself. So it's very important to identify who you are, what is it that is your strength, and what is it that excites you in life. And that's the only way you'll be able to succeed definitely in life. So just before I joined and when you were listening to Gupta sir, he was also talking about goal setting. He was saying that, if you just go ahead in life without any sort of vision, then you'll never be able to reach anywhere, which is true, right? So if you don't have a goal post, then you don't know where to run towards, right? Now, establishing SMART goals, very important. Do you know what SMART goals are? Anybody knows what SMART goal means? Can somebody share with me what SMART stands for? Anybody? You can even look up on Google, come on. Okay, so Shivam, that's right. Sometimes other thoughts are better than ours. Of course, that's what I just said, that you must listen to others, but decide what is good for yourself. So for example, if somebody tells you joining NASA is the best thing right now, because, there'll be a lot of studies going on in the spaceship, kind of like arena, but maybe you don't have the talent for it. Will you be able to succeed in it? So therefore, it's important to understand that, yes, I'll listen to everybody's advice, but I also need to understand what aligns with me, what aligns with my strength. So Lappu says, SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Fantastic. Yes. So SMART goals are goals that you have actually thought about and making sure that they're specific. You're being able to measure whether you're being able to go from point A to point B. They're achievable. They shouldn't be goals that, you can definitely not achieve. But then, like, for example, if somebody's 100 kilos and he decides that he wants to become 30 kilos in 2 months, is it doable? Yes, no, maybe? No, ma'am. It's not doable, because if somebody does that, that person's definitely going to die. But if the person decides that, okay, I want to lose that many number of kilos, then I have to have a plan which will make sure that I'm losing weight in a healthy way. So maybe in 6 months, 7 months, or maybe 1 year down the line, that person can actually achieve that goal. So you need to understand what is achievable, and accordingly, you need to make your plan. So mission statement, right? So what excites you? What is it that you want to achieve in life? And that should guide you to decide what is the mission and vision in your life. Something in the lines of what Gupta sir also shared with you, right? And once you know what is it that you really achieve, that's when it becomes so much easier to making sure that you're formalizing these goals and visualize the goals as well. So it's very important to
actually imagine also that, yes, I will be able to get there, because that's what will give you confidence. However, it's also important to acknowledge that goalposts can change. There are times when we set out to get something, we set out to achieve something, but halfway through the journey, you might just decide that this is not really feasible for me. It's possible that I change my goals, and that doesn't mean that you become a failure. So always remember, reaching a goal is not all success. So if you look at this picture here, as you can see, there are different shades of success. There's a lot of success, but every bit of success is built on pillars of failure. So if somebody tells you that you cannot fail, that person is wrong, right? It's okay to fail, but it's very important to learn from that failure. It's very important to understand why you failed. So if you're going to fail and not do anything about it, then that is going to be a wastage. But if you actually analyze that failure, find out why you failed, and work on it, then that failure can actually become a stepping stone to your success. So always remember that failing is not bad. Failing is just another way of learning, right? And once you start realizing that, you'll see life becomes so much easier, and you will be able to motivate yourself. Radhe Krishna, I'm really sorry, I don't speak very good Hindi. I'm really sorry about that, but I can definitely translate some of the things. Okay, now Vishal is also telling me to speak in Hindi. Actually, मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानती हूँ इतना अच्छा, but थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ. If this is okay with you, then I can definitely. Ma'am, you can use a mixed language. Yeah, half okay. Hindi, half English. That would do. All right. Okay, I wasn't prepared for that. पर ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ. But अगर मेरा grammatical errors हो, तो please मत हंसिए, because मैं बहुत ज़्यादा हिंदी अच्छा नहीं बोल पाती हूँ. All right. Okay, I see Satyam has written mobile telephone with computer features that may enable it to interact with computerized systems. Satyam, can you please tell me कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझी नहीं. सत्यम, आप अनम्यूट करके बता सकते हो प्लीज? ओके, while he is telling me something, अविनाश, आपने पूछा मैम व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस. आप बताओ अविनाश, why don't you tell me, आपके लिए what is the real meaning of success? Let me help you build on that. पीयूष बोल रहे कि मैम इंग्लिश में गो ऑन करो. ओके, मैं इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ. कैन यू प्लीज, क्या नाम है आपका? आई एम सॉरी, ये मैसेजेस इतना फास्ट जा रहे हैं, मैं ना देख नहीं पा रही हूँ. अविनाश, आप अगर ऑनलाइन हो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ और आप हमें बताएं कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है. ओके, सो विशाल बोल रहे हैं कि फॉर मी लॉट्स ऑफ मनी इज सक्सेस, एंड रोहन बोल रहे हैं रिस्पेक्ट, मनी, हेल्थ, गुड रिलेशंस. वेल, बोथ वेज. देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा, मनी इज द आउटकम ऑफ योर सक्सेस. आपको हवा से पैसा नहीं मिल सकता है, आपको कुछ करना है वो पैसे लाने के लिए, राइट? तो उसी में, तो वो जो वे आप तैयार करोगे, जो फेम एंड मनी, समबडी सेइंग अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड विजन्स एंड प्लान गोल्स, एब्सोल्युटली. तो जो भी आपका अच्छा, somebody is saying, I'm sorry, now I'm confused. जब relative आपके पास फोन कर हालचाल पूछ रहा है, that is success. Okay, I don't understand the relevance of it. Again, Dipanshu, if you can just explain that. Okay, I like what Mohit is saying. For me, when your signature becomes autograph. Yes, please. Yes, I just heard somebody. आपको कुछ बोलना है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए. ओके, फाइन, आई विल गो अहेड अगेन. श्रद्धा जी, व्हाई डोंट यू स्टॉप मी अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो मुझे आंसर करना है, बिकॉज़ इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं. Yes, ma'am. Yes, yeah. If there is some important question, then I'll interrupt you. Yes. Otherwise, you can interact with the students. No Yes. need to check the chat, ma'am. I'll check it for you. Okay, thank you so much. All right. तो ये जो आपने पूछा कि सक्सेस क्या है, वेल, सक्सेस के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स है. जैसे आप कोई हाईवे में जाते हो
माइलस्टोन आते हैं, राइट? माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? अब हर कुछ किलोमीटर जाओ, देयर अ साइन जिसमें लिखा रहता है कि आपको आपका डेस्टिनेशन से और कितना दूर जाना है, राइट? डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए और कितना दूर जाना है, वो किलोमीटर कम होता जाता है। सो विच मीन्स व्हाट, आप आपके डेस्टिनेशन के पास जा रहे हो। एंड ऑल्सो हर माइलस्टोन में कुछ ना कुछ रहता है, कोई माइलस्टोन में सीनरी रहता है, कोई माइलस्टोन में आपके ब्रेक के लिए कोई रेस्टोरेंट रहता है, कोई माइलस्टोन में पेट्रोल पंप रहता है। सो व्हाट डज दैट मीन कि आप कोई भी जर्नी में जाओ, आप एंड टू एंड बिना रुके नहीं चल सकते हो, राइट? आपको रुकना है बहुत सारे जगह में, पर क्यों? कहीं पे आप खाना खा रहे हो ताकि अपने बॉडी में फ्यूल ले लो, कहीं पे आप गाड़ी में फ्यूल लेने के लिए पेट्रोल पंप में रुक रहे हो, कहीं पे आप रुक रहे हो एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो आप एक सीनरी में रुक के आप शायद फोटो खींच रहे हो। तो कोई भी जर्नी में आपको कहाँ पे हॉल्ट करना है, ये भी आपके स्मार्ट गोल के अंदर आना चाहिए, राइट? कहाँ पे आप वो हॉल्ट लोगे, कहाँ पे आप वो मेजर करोगे कि आपने जो जर्नी चालू किया, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? अगर नहीं जा रहे हो तो आपको क्या करना है? दिस इज हाउ, अगर आप एनालाइज करते रहो तो जो भी आपका गोल हो, इट्स वेरी वेरी डूएबल टू रीच दैट गोल। सो व्हाट आर सम ऑफ द माइलस्टोन्स? ऑफ कोर्स मैं जो बोल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रही हूँ टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, राइट? सो अगर आप इस सेम चीजें आप अगर पैरेलली जो भी आपका मतलब डायरेक्शन है लाइफ में उसके साथ रिलेट करो, आप कर ही सकते हो। बट मेरा जो भी बोलना है, मैं ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ रही हूँ, बिकॉज दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इज योर ग्रिप ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, राइट? अगर आप कम्युनिकेट अच्छे तरह से नहीं कर पाओगे, आप कभी भी इंप्रेस नहीं कर पाओगे। सो वेदर इट्स कोई अगर आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और आपको इंटरव्यू देना है, अगर आप अच्छे तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके खुद के बिजनेस है, आप वो बिजनेस में इन्वेस्टर लाना चाहते हो, आपको फिर भी जाके कम्युनिकेट करना है, आपको जाके बिजनेस प्रपोजल्स रखनी है, आपको कन्विंस करना है मार्केट में कि क्यों आपको वो पैसा चाहिए। आप बैंक में जाते हो आपके बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, आपको लोन चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाउ विल यू ब्रिंग इट इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट? सो कम्युनिकेशन स्किल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माइलस्टोन जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना है। नाउ कम्युनिकेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन ओनली स्पीकिंग, बाय द वे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत सारे पार्ट्स है। इनफैक्ट अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करना चाहूँ तो आई कैन एक्चुअली स्पीक टू यू फॉर द होल डे, ऑलराइट? पर यहाँ पे मैं आपको समरी में सब कुछ बता रही हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल के भी दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं, वन इज द वर्बल पार्ट एंड वन इज द नॉन वर्बल पार्ट। verbal part are the words, right? These are the words that we are speaking. तो आप कैसे प्रोनाउंस करते हो और कैसे साउंड करते हो, आपका वॉल्यूम क्या है, आपका टोन क्या है, ये सब वर्बल के अंदर आ जाते हैं। नॉन वर्बल क्या है? आप कैसे, आर यू लुकिंग कॉन्फिडेंट, आप कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग विथ यू, एज यू कैन सी आई एम मूविंग माई हैंड्स। वेरी ऑफन यू विल सी पीपल who are not able to use their hands when talking. आप अगर बहुत अच्छा बात कर रहे हो पर आपको मालूम नहीं है कि आप हाथ को लेकर क्या करो, यू इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग वेरी वेरी इनकॉन्फिडेंट। आपने कभी देखा है कोई भी स्टेज में जब कोई बहुत अच्छा स्पीकर बात कर रहे हैं, आपने कभी देखा है कि वो ऐसे करके खड़ा होके बात कर रहे हैं? नहीं करते हैं। जैसे वो मूव करेंगे, जैसे उनके हाथ मूव होगा, जैसे उनके आई कांटेक्ट होंगे, ये सब कुछ इज एक्चुअली अ ह्यूज 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 थिंग दैट यू नीड टू लर्न। और ये सारी चीजें सीखा जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी यू काइंड ऑफ आर बोर्न एंड यू लर्न, ऐसा नहीं होता है। पर आप जैसे जैसे लाइफ में जाते हो ये सारी चीज सीखा जा सकता है। एंड आई एम सो श्योर दैट आप जब मैनेजमेंट कॉलेज में पहुंच गए हो, यहाँ पे आपके जरूर ये सब कम्युनिकेशन स्किल ओरिएंटेड सेशन जरूर होंगे। आप वहां से बहुत कुछ सीखोगे एंड डू नॉट एवर अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, बिकॉज लाइक आई सेड कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बेस जो है वो जो अगर स्ट्रांग नहीं हो तो डेफिनेटली आपको आगे जाके मुश्किल होना है। वो आप खुद एंटरप्रेन्योर बनो या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करो
या फिर कोई हायर और भी फर्दर हायर स्टडीज के लिए बात करो, कहीं भी जाओ, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर. यस महेश, यू रेज्ड योर हैंड, प्लीज टेल मी, आस्क मी और टेल मी. मैम जैसे कि अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो जैसे हम आई कांटेक्ट मतलब फेस टू फेस आई कांटेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा बैड इंप्रेशन जाता है, तो हमें मतलब कहाँ देख के बात करना चाहिए? सॉरी, मैं समझी नहीं. आप बोल रहे हो कि अगर आप आई कांटेक्ट करें तो उसके लिए बैड इंप्रेशन होता है? ये आपको या किसने कहा? ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है. नहीं, आप बैड इंप्रेशन नहीं होता है, बट आपके अंदर एक लो एनर्जी आती है. पर ऐसा क्यों होगा? आपके अंदर तब लो एनर्जी होगा जब आपकी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है. इनफैक्ट आई कांटेक्ट इज द फोरमोस्ट थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आप आंख से आंख नहीं मिला पाते हो और आप आंख चुरा लेते हो, दैट इज वन वे फॉर द इंटरव्यूअर या फिर जो भी आपसे बात कर रहे हैं उनका ये अजम्पशन करना कि आप में कुछ प्रॉब्लम है. तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए. आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इनफैक्ट आपको मैं और एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप इंटरव्यू के बारे में छोड़ दो. आप सोचो कि आप कोई एक नया किसी से मीट कर रहे हो, राइट? आपके दोस्त या फिर किसी से मीट कर रहे हो, और अगर आपको वो पर्सन बोले हेलो और आपके तरफ देखे और आप नीचे की तरफ देख के अगर हेलो बोलते हो, क्या वो जो जिसने आपको हेलो बोला वो व्हाट डू यू थिंक विल गो ऑन इन दैट पर्सन्स माइंड? या फिर अगर आपके साथ ये कोई करता है, क्या होगा? मैम यहाँ तो सेम सिचुएशन होती है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती. जो जैसे हमारे कोई सीनियर होते हैं तो वहाँ पे मतलब नर्वसनेस आता है हम लोगों में. राइट. तो आप जो अभी कहा वो सिम्टम है. फिर एग्जैक्टली आप नर्वसनेस के लिए आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, उसके मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना है. पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आई कांटेक्ट करना नेगेटिव है, देन दैट इज गलत. राइट? आई कांटेक्ट इज वेरी या इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब कोई इंटरव्यू के लिए आएंगे आपके कॉलेज में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यूअर के साथ आंख में आंख नहीं मिला के बात करेंगे तो फिर आपको पहले ही आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आप कितना भी अच्छा आपका रिजल्ट हो. ओके? नहीं मैम, एक मेरे सर थे, उन्होंने बताया था कि जैसे आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है तो आप उनके नोज पे देखिए, उनको लगेगा कि आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको नर्वसनेस भी फील नहीं होगा. तो दैट इज अ टेक्निक टू ओवरकम नर्वसनेस. इसके मतलब ये नहीं है कि आई कांटेक्ट मत करो, इसके मतलब ये है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट इज अनदर टेक्निक टू एंश्योर कि सामने वाले को ये पता ना चले कि आप में कॉन्फिडेंस का कमी है. तो तब जो आपने आपको कहा है वो बिल्कुल सही कहा है. दैट्स अ टेक्निक कि अगर आप आंख से आंख नहीं मिला पा रहे हो, तो अगर आप किसी के नोज के यहाँ पे देख के बात कर रहे हो ना, फिर भी इनको नहीं लगेगा कि आप आंख नहीं मिला पा रहे हो. तो इट्स अ टेक्निक. पर वो करते करते आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ताकि आपको डर नहीं रहे और आप किसी के आंख में आंख मिला के बात कर सके. दैट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इवन इन दिस वर्चुअल सेटिंग. इफ यू लुक एट इट, अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा हम तो वर्चुअल सेटिंग में है, मैं तो दूसरी तरफ किसी को नहीं देख पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आई कांटेक्ट ही नहीं करूंगी, मैं ऐसे नीचे देख के बात करूंगी, I will never be able to get any interaction from you. मैम It's मैं not आई possible. कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है. महेश, इसके मतलब मतलब आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी है. एब्सोल्युटली. तो इसके मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना है. तो अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सारे टेक्निक्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जैसे आपने एक शेयर किया मेरे साथ अभी, ये भी एक टेक्निक है. तो ऐसे बहुत सारे और टेक्निक्स होते हैं, तो आप उसमें ध्यान दीजिए, वो सीखिए. एंड आई एम श्योर कि अगले 2 साल में आप जैसे जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ बात करेंगे, कॉलेज में बहुत सारे नए नए लोगों के साथ बात करेंगे, आप खुद भी इसको ओवरकम करना पाएंगे. पर उसके लिए आपको सबसे पहले जो जरूरी है वो आप में अपने आप में ये बिलीव करना कि मैं कर पाऊंगी. क्यों मैं डर रही हूँ किसी से? क्यों मैं डरूंगी किसी से? मुझे आता है ना, मुझे जो मेरा सोच है वो बिल्कुल सही है, जो मेरा नॉलेज है वो बिल्कुल सही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जब तक आप ये सेल्फ टॉक नहीं करोगे, जब तक अपने आप को आप पुश नहीं करोगे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज. सो आई होप दैट answers your question, Mahesh, and I hope you definitely work on your confidence level आगे जाके. And I can assure you 2 साल बाद आप खुद देखोगे कि आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, और you will be proud of yourself. Okay? ओके, थैंक यू. ऑलराइट. और कम्युनिकेशन स्किल के बाकी जो 2 और इम्पोर्टेंट हिस्से हैं वो है लिसनिंग स्किल एंड क्वेश्चनिंग स्किल.
अगर मैं ठीक से सुनूंगी नहीं कि मेरे आगे वाले लोग क्या बोल रहे हैं, जिसके बेसिस पे मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, then also I'm never going to be communicating well. So I've seen, for example, I go to a lot of colleges, you know, to either do mock interviews या फिर actual interviews में भी गए हूँ. मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा मुश्किल यहाँ पे होता है कि लोग रट्टा मार के आते हैं कि मुझे ये 5 क्वेश्चन कॉलेज ने सिखा दिया है, अभी मुझे यही 5 आंसर बोलना है. अभी सामने इंटरव्यूअर अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करे तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आंसर अभी क्या देना है, तब जाके वापस आप वो जो क्वेश्चन का आंसर सीख के आए हो वो बोलते हो. अगर वो करते हो देन व्हाट हैपेंस इज द इंटरव्यूअर फील्स कि आपको समझ नहीं आता है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. और अगर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हो तो आपको कोई काम पे क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आप कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे वहां पे आपको क्लाइंट क्या बोल रहे हैं वो समझना है, आपके बॉस क्या बोल रहे हैं वो समझना है, आपका लीडर्स क्या बोल रहे हैं वो समझना है, क्योंकि जो आप समझोगे उसके बेसिस पे आप काम करोगे, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लिसनिंग स्किल्स एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स एज इन रेलिवेंट क्वेश्चन. आपने कुछ सुना, अभी तुरंत आंसर देने के पहले अगर आपको लगता है कि मैं और एक क्वेश्चन पूछूं तो मुझे और क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्वेश्चन है क्या, then it becomes so much more easier to not make a mistake. Again, that also has relation with confidence level. So महेश, ये भी एक चीज आप सोच सकते हो कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं समझा, इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं वापस पूछूं कि अच्छा आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो. उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके आगे वाला ये समझते हैं कि आप वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हो, then of course your learning will always be higher and your response will also be more to the point. तो therefore communication skill is the first milestone जिसके बारे में आपको बहुत सीरियस होना है और जिसको लेकर आपको डेफिनेटली रिसर्च करना है, पढ़ाई करना है, लोगों से बात करना है, आपको टिप्स लेनी है और प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू गो अहेड इन लाइफ, not just in the corporate world, anywhere. Next sorry to interrupt, like we are having BTech students also in this session, BTech and MBA management students, and ma'am we can take the question answers at the end of the session, because like lot of questions are coming in the middle, so you won't be able to like go through the entire presentation. What I'll do is once I complete this slide, I'm going to ask you for the questions and then we'll take on the questions. Okay. Yes. Yeah, because this will also give some relevance to the questions as well. Okay. Yeah. Okay. Now the second very important milestone is business etiquette. What does etiquette mean? It's a French word जिसका मतलब basically होता है manners, right? तो ये etiquette अगर historically देखा जाए तो बहुत centuries पहले राजाओं का जो castles होते थे, जहाँ पे सोचो कि कोई बहुत बड़ा कोई पार्टी हो रहे हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं, तभी अभी ये राजा के सामने जाने के लिए या फिर राजा के जो कासल है वहां पे घूमने के लिए कुछ रूल्स होते थे. जैसे सोचो कि ग्रास पे आप स्टेप ऑन नहीं कर सकते, या फिर खाना खाने के टाइम पर्टिकुलर वे में आपको वो छुरी काटा लेनी है, या फिर राजा को देख के बाउ डाउन करना है, या फिर हैंडशेक करना है. तो यही सारे हिस्ट्री से वो एटिकेट जो है ये सारे फॉर्म होना चालू किया, और फिर सेंचुरीज जैसे टाइम बदलते गए, रिक्वायरमेंट बदलते गए, तो मैनर्स भी बदलते गए. तो अभी हम लोग जब बिजनेस एटिकेट के बारे में बात करते हैं, हम इसको रिलेट कर रहे हैं टू द वर्क सेटिंग, कि आप जब कोई वर्क सेटिंग में जाते हो, एंड दैट इंक्लूड्स योर कॉलेज ऑल्सो, क्योंकि रिमेंबर मैनेजमेंट कॉलेज इज नथिंग बट अ लाइव सिमुलेशन. इट्स लाइक आप जो इसके बाद जो स्टेप लोगे वो, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अगर आप खुद के बिजनेस करो तो खुद के बिजनेस, जो भी करो, ये जो बिजनेस सेटिंग है इसमें आप कैसे अपने आप को पेश करोगे, ये सीखने का सबसे अच्छा लाइव सिमुलेशन ग्राउंड है आपके कॉलेज. आप अगर ये सारी चीजें अभी से प्रैक्टिस करोगे तो जब तक अब ये सिचुएशन में पहुंचोगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू एक्शन. सो पहली बात, whenever you are coming in contact with somebody, making the first impression is very important. वो पहला impression कहाँ से आता है? Again, Mahesh, sorry I'm taking your name because you took you spoke about confidence level, तो क्योंकि ये related है इसलिए मैं आपके नाम ले रही हूँ.
पहला जो इंप्रेशन है वो आता है आई कांटेक्ट से, आपके स्माइल से, आप कैसे हैंडशेक करते हो उससे, और कैसे आप ओवरऑल जो आपका जो इंप्रेशन है वो सामने वाले पे कैसे पड़ता है. एंड इट टेक्स ओनली 30 seconds फॉर दैट टू हैपन. Some researchers say 15 seconds also, so let's say 15 to 30 seconds. So basically आप जैसे कहीं पे भी आते हो across somebody else, वो जो पहला आई कांटेक्ट, वो जो पहला हैंडशेक, वो जो पहला स्माइल, वो जो पहला हेलो, उसी से दूसरे बंदा डिसाइड कर लेता है कि वो आपसे बात करेंगे कि नहीं, या फिर वो आपसे कोई काम की बात आगे बढ़ाएंगे कि नहीं. तो इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और अगर आपके खुद के बॉडी लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल नहीं हो, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन इटसेल्फ कैन गो रियली रॉन्ग. और अगर आपका पहला इंप्रेशन गंदा हो गया तो फिर उसको रिकवर करने में बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक दिस से, इज द लास्ट इंप्रेशन. इसीलिए आपको बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारी काम करना है. Apart from the non-verbals, which is eye contact, handshake, smile, etc., your grooming and personal hygiene is very important as well. अब जब हम लोग ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं, एक गलत फहमी मैंने देखा है लोगों के मन में है कि ओ इसके मतलब मुझे बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनना है, एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाना है. दैट इज नॉट ट्रू. ग्रूमिंग के मतलब होता है साफ सुथरा, अच्छा, मतलब प्रेस्ड कपड़े, जो कपड़े ओकेशन के रेलेवेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो और अगर आप घर के शॉर्ट्स और एक टी शर्ट पहन लिए जिसमें बहुत सारे एवेंजर का पिक्चर है, डू यू थिंक दैट इज अ राइट अटायर टू वेयर टू मीटिंग लाइक दैट? इट्स नॉट. सो इट्स अबाउट ओकेशन अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, राइट? या फिर आप कोई शादी में जा रहे हो, अगर आप शादी में जाओगे तो वहां पे अगर आप एक छोटा सा स्कर्ट, छोटा सा टॉप पहन के पहुंच जाओगे, आप वेलकम नहीं होगे, क्योंकि एक इंडियन शादी है, वहां पे एक सर्टेन वे ऑफ ड्रेसिंग है. तो कोई भी ओकेशन अप्रोप्रिएट जो ड्रेसिंग होता है, जिसमें आपने हेड टू टू खुद के केयर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ साफ कपड़े, प्रेस्ड किए हुए कपड़े, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कपड़े, साफ जूते, अच्छा कट किया हुआ नेल्स, साफ हैंड, दीज आर दी बेसिक थिंग्स, राइट? और अगर आपका जो पर्सनल हाइजीन है, दैट इज मेकिंग श्योर कि आप यू हैव टेकन अ बाथ, यू नॉट स्मेलिंग ऑफ स्वेट, ये सारे छोटे छोटे चीज, ये अगर आप टेक केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली हाउ यू विल बी प्रेजेंटेड will also have an impression on the person that you're interacting with. And finally, telephone and email etiquette, again, that's also another very very large topic. मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है, but yes, how you start an email, how do you start a conversation, ये सारी चीज भी बिजनेस एटिकेट के अंदर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट विच इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर कि आप कोई भी वर्क प्लेस में अपना इंप्रेशन बना पा रहे हो. Along with these two milestones, there's tons of other things. For example, your domain knowledge. So, आप जो भी चीज में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, you must have a lot of command on that. जब तक आपके पास वो डोमेन नॉलेज का कमांड नहीं है, आपको कोई दूसरा पर्सन पूछेगा क्यों? और जब आपके पास वो डोमेन नॉलेज इतना सही होगा ना, तब ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा. नाउ व्हेन आई से कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस में बहुत फर्क होता है. रिमेंबर दैट. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे में वो अकड़ आ जाए कि ओ यू नो व्हाट, आई नो मोर देन यू. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. बट इट्स अबाउट I know my subject, so if you ask me questions, I'll be able to convince you with my answers. That's domain knowledge, right? जो भी आपका डोमेन है, उसमें आपको बहुत बहुत सॉलिड होना है. Attention to details, छोटे छोटे चीज का ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ईमेल के बात कर रहे हो तो सही फॉर्मेटिंग, सही पंक्चुएशन, सही स्पेलिंग. आप सीवी बना रहे हो, सेम थिंग. I've seen lot of people lose jobs क्योंकि उनका सीवी अच्छे तरह से बनाया नहीं होता है, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, उनमें प्रॉब्ली किसी ने, मैंने खुद देखा, कोई एक इंटरव्यू में लेने गई थी मैं, जहाँ पे किसी ने आया, एक ऐसे सीवी को ऐसे फोल्ड करके बैग के अंदर रखा हुआ था, उसको निकाल के ऐसे करके खोल के मुझे दे दिया. मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि इस बंदे को तो अपना प्रेजेंटेशन ही पता नहीं है, इसको पता ही नहीं है कैसे फॉर्मल सेटिंग में एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा सकता है. तो छोटी छोटी चीजें, एवरीथिंग, वेदर इट्स योर बॉडी लैंग्वेज, इट्स योर पर्सनल हाइजीन, ऑल दैट फॉल्स अंडर अटेंशन टू डिटेल्स. टेकिंग इनिशिएटिव्स. आज के जमाने में
आप अगर वेट करते जाओगे कि कोई आपको आके कुछ परोस के देंगे और तब जाके आप कोई काम करोगे, यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. Learn to always go forward and say, can I do this please, can I try that please. If you don't know how to do it, fail, learn, and by the time you have learned again and tried again, you've been able to do it. And that will also help you build your confidence. कॉन्फिडेंस इन्हीं सब चीजों से आता है. जब आपको ये समझ में आना लगता है कि मेरे में वो वैल्यू है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस चीज को ओवरकम कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दिखने लगता है. मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस डजंट मीन कि आप मुझे जो भी बोलना है मैं सब कुछ पावर पॉइंट में डाल दूं. अगर डाल दिया तो लोग मेरी बात सुनेंगे क्यों? तो कभी भी आप जब पीपीटी बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, टू इंश्योर कि आप वो जो स्टोरी है वो कैसे बना रहे हो, आप कैसे जो मेन पॉइंट्स है वो लिख रहे हो, बाकी कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी अटेंशन टू डिटेल्स के अंदर आता है कि कैसे मैं कोई प्रेजेंटेशन के पहले मुझे मेरा नॉलेज इतना अच्छा हो कि बिना कुछ देख के भी मैं बात कर सकती हूँ. सो दैट इज मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड. सो जैसे आप बात कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो, automatically that will help you in the way you are heard by people. Storytelling, another very important skill. What does storytelling mean? For example, आपको कोई इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, अभी आपके पास बहुत स्टैटिस्टिक्स है, आपने एक स्लाइड में सब कुछ तो डाल दिया कि पिछले 3 साल पहले हम लोगों ने जो पैसा लिया था उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ, उसका ये ऐसे ऐसे करके उसका कैपिटल गेन हुआ, फिर हमको उनको री इन्वेस्ट किए और उसके एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. एक्सक्यूज मी. नाउ ये जो सारे ग्राफ्स, ये जो सारे डेटा आपने एक स्लाइड पे डाला है, अगर आप वो कन्विंसिंगली उसका जो स्टोरी है वो अगर नहीं बता पाओगे तो फिर जो इन्वेस्टर है वो कभी कन्विंस्ड होंगे नहीं, राइट? एंड द सेम लाइज ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स दैट यू मे डूइंग. सो स्टोरी टेलिंग, लर्निंग हाउ टू मेक श्योर कि आप जो प्रिपेयर किया है उसको कहानी कैसे बतानी है ताकि आगे वाला लोग कंपेल्ड हो टू लिसन टू यू. डेवलपिंग सोशल स्किल्स, व्हाट डज दैट मीन? हाउ डू आई कंडक्ट माई सेल्फ इन सोशल सेटिंग्स. आप कभी भी कोई भी सिचुएशन में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि हर किसी को आप जानते हो, आप जानोगे नहीं लोगों को, हर दिन आपको नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा. पर कैसे आप वो पहला जो मीटिंग है कैसे आप पेश आओगे, आप कैसे उनके साथ आगे जाके बात करोगे ताकि वो पर्सन को लगे कि यस आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, आई वांट टू टॉक टू दैट पर्सन. दैट्स अबाउट सोशल स्किल. एंड फाइनली all these will help you strengthen your self-esteem. I'll take a pause here. You can please tell me the questions that you want me to answer and then I'll go ahead from there. Shraddha ji, you can please tell me the questions. Yeah. Let's go one by one. Okay, so tell me one question and then we'll go. I'll answer and then next. Yes, we have only 20 minutes. These are personal questions. Ma'am, what is the most appropriate answer if an interview asks? He's asking for an interview question. Guys, we'll prepare for the interview questions in some next session. Yes. However, let me ask the relevant questions to ma'am, please. But however, since you're bringing up the interview question, this is my one advice to all of you. Please don't get stuck in that whole game of के ये सीखा है सिर्फ यही बोलना है. समझो जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कैसे आंसर करना है वो आपको टेक्निक बता रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाहर कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. तो खुद को वो भी रिसर्च करते जाना है. और आजकल के जमाने में एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सो डोंट बी स्टक इनटू मुझे सिर्फ ये बताया गया तो मैं सिर्फ इतना ही करूंगी. ऐसा नहीं है. You need to go out there and like read a lot. You need to research a lot on your own also, so that you can become better prepared. Yes, Shraddha ji, next question. How to boost our confidence level? This is the question asked by a student. Okay, so ये जो मैंने अभी स्लाइड में जितने सारे चीजें एक्सप्लेन किया, ये सारी चीजें लीड अप टू कॉन्फिडेंस लेवल. और जो उसका शुरुआत होता है, जैसे मैंने कहा कि आपका कॉलेज जो है दैट इज लाइव सिमुलेशन. आप वहां पे हर रोज छोटे छोटे चीज आप प्रैक्टिस करो. पहली बात तो खुद का एक लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज है जिसमें आपको खुद को डेवलप करना है. फॉर एग्जाम्पल, शायद हो सकता है कि आपको नए लोग से पहले बार मिलने में हिचकिचाहट होते हैं. मे बी आपको
कंफर्ट लेवल Yes, होता ma'am. नहीं है जब तक दूसरे पर्सन आपको पहचानते नहीं है. इन दैट Yes, केस yes. मेक श्योर यू हैव मेड अ लिस्ट कि एवरी यू मेक एन एफर्ट कि हर दिन मैं कॉलेज पे कोई एक अननोन पर्सन के पास जाके मैं पहले हेलो बोलूंगी, मैं पहले वो हैंडशेक करूंगी, वो मैं पहले कोशिश करूंगी कि कैसे इस बात को आगे बढ़ा पाए. द मोर यू डू दिस you know kind of like grow more confidence to talk to strangers. So simple things like this. तो ये शुरुआत वहीं पे होगा जब आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी चीज इन कॉन्फिडेंस लेवल का मैट्रिक्स में आप में कमी है और उसमें काम करना है. गो ऑन श्रद्धा जी. How can I eye contact with, how can I make eye contact with 5 people at the same time? You cannot make eye contact with 5 people at the same time. तो फिर हम लोग ऐसे बात करते, ऐसा तो नहीं होता. But then वीडियो कॉल पे कर सकते हैं मैम. वीडियो कॉल में भी नहीं कर सकते हैं. सोचो कि मेरा स्क्रीन में आप ऊपर से नीचे हो, अगर मैं ऐसे देखती रहूं आपको डिस्ट्रैक्शन होगा. सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. वीडियो कॉल में कभी भी आई कांटेक्ट करना हो तो यू हैव टू, द स्पीकर हैज टू लुक इनटू द कैमरा, एज इन जो कैमरा का लेंस है ना, आपको वहां पे आई कांटेक्ट करना है. दैट इज व्हाट विल मेक एवरीबॉडी फील कि आप सबके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो. बाय द वे दैट्स अ टेक्निक. ओके, so I cannot look on the screen like this. अगर मैं देखूं तो I'll look inconsistent. So video call में it's very easy because you can straight look into the camera and people will feel like आप सबके साथ eye contact कर रहे हो. However, in a physical setting, अगर 5 लोग हैं, then the way to do it is you should first start in the middle and then हर 2-3 सेकंड में आप अगले जन के साथ आई कांटेक्ट करोगे, उसके बाद अगले जन के साथ आई कांटेक्ट करोगे, फिर वापस मिडिल में आओगे, फिर वापस हर 2-3 सेकंड में अगले जन, फिर अगले जन. सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी एवरी 2-3 seconds. एंड इफ यू स्टार्ट इन द मिडिल देन दैट विल बिकम योर लेवलर. कभी लेफ्ट उसके बाद से कभी, पर ऑल इन अ डिसाइडेड ड्यूरेशन. आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. Shall I proceed, Shraddha ji? Yeah, you can proceed. Okay. All right. So, you know what? Because I've got only 20 minutes and I've got lots to talk about. I remember Shraddha ji had mentioned to also talk about how artificial intelligence is kind of like, you know, how we are working in the artificial intelligence field in our companies. And also, मैंने सुना गुप्ता जी भी वो topic पे भी touch किए. So what I'm going to do is, though I kept it at the end of the presentation, I'm going to skip to that bit first, so that I want to talk a little bit about that because I know that that is the need of the hour, right? So I will just go to that. Okay, so this is now an important thing that I hear everybody talking about, right? The future of work in the age of artificial intelligence. कि क्या होगा? क्या सबका जॉब चला जाएगा? क्या हम सब बेरोजगार हो जाएंगे? क्या रोबोट्स होंगे हम? You know what? Every time कुछ भी नया मार्केट में आया है, there have always been speculations like that. Artificial intelligence is actually strengthening the way we are working. And how is that happening? So here's some interesting statistics that, you know, as per Gartner and other research documents, here are some very interesting, you know, statistics. It says that 35% of large organizations will establish the role of chief AI officer, and this strategic move will be required for business strategies and decision making. So already सारे कंपनीज में जैसे जैसे एआई को लेकर काम किया जा रहा है, एक सीओई बन रहा है, राइट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे मोर एंड मोर स्पेशलिस्ट्स आर बीइंग टेकन, जहां पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है कि कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं इन आवर डेली वर्क टू मेक श्योर कि वी बिकम मोर प्रोडक्टिव. सो ऑब्वियसली जहां पे ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, वहां पे आगे जाके देयर विल बी चीफ एआई ऑफिसर, समथिंग दैट इज नॉट देयर राइट नाउ, राइट? Next is the usage of synthetic data will witness a remarkable rise, leading to a 70% reduction in the need for real data in machine learning process. What does that mean? Currently, we are still trying to get a lot of data, right? तो machine आपका जो large language models होते हैं, जो बहुत बड़े machine learning में आपको जो data feed करना पड़ता है, unless there's tons and tons and tons of data, आपका वो जो एल्गोरिदम्स है वो कभी भी आपको एक सही प्रेडिक्शन नहीं देगा. जिसलिए अभी भी वी आर ऑल एट द स्टेज जहां पे डेटा पे डेटा, रियल डेटा पे रियल डेटा कलेक्ट होता जा रहा है.
बट बाय द टाइम 2025 तक हम पहुंचे, इतना सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी हो जाएंगे कि बहुत सारे काम विल बी हैपनिंग ऑन synthetic data also. What is synthetic data? Synthetic data is information that is artificially manufactured. तो आपके पास इतना डेटा है कि उसके ऊपर से आप ट्रेंड देख के, एल्गोरिदम्स देख के आप बहुत सारी चीजें तब प्रेडिक्ट कर पाओगे, जो कि फिलहाल अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है. Finally, AI solutions are projected to create more than 500 million net new human jobs by the year 2033, offering new opportunities and shaping the workforce of the future. AI और भी ज्यादा नए जॉब्स ला रहे हैं. डिफरेंस क्या होगा? अगर आप पुराने ख्याल के साथ बैठे रहोगे कि मुझे तो ये पढ़ाई करना है, मुझे सिर्फ इतना ही लाइफ में करना है, तो फिर आप डेफिनेटली अटक जाओगे. पर अगर आप वन ऑफ दोज लर्नर्स हो जो कि कंटिन्यूअसली सीखना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा. और वो जो गोल पोस्ट, जिसके बारे में मैं पहले भी बताया कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो सकता है, और गोल पोस्ट शिफ्ट करना जानना भी जरूरी होता है. अगर आप आगे जाके देखते हो कि हाँ, थिंग्स आर चेंजिंग, आई हैव टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स, और तब अगर आपका खुद का जो गोल पोस्ट है वो आप उसके साथ साथ चेंज नहीं किया, तब आप डेफिनेटली गोल आपका जो गोल है वहां पे रीच ही नहीं कर पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी अवेयर राइट नाउ, टू रीड अ लॉट, टू फाइंड आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसर्चेस, कीप योर आईज आउट ऑन लाइक व्हाट एल्स इज हैपनिंग, what else can I learn. So what are some of those new jobs that will come? So for example, AI trainer and operator, AI generated work auditor, AI prediction analyzer, क्योंकि जब बहुत सारे predictions होंगे तब analyzers भी लगेंगे, input and output manager, integration specialist. So there are a lot of them. So as you can see this list, and there's many more. These are only a few things which are being reimagined. So the best part is we are right now at a time जहां पे सब कुछ फिर से सोचा जा रहा है, जहां पे सब कुछ स्टैग्नेंट और नहीं है, सब कुछ नए तरीके से हम लोग देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि कैसे और भी किया जा सकता है. सो राइट नाउ वी आर एट अ टाइम व्हेन पॉसिबिलिटीज आर ह्यूज. और एआई कभी भी ह्यूमंस के साथ बिना चल नहीं सकता, क्योंकि फाइनली ह्यूमंस का ही ब्रेन उसके पीछे है. ऑफ कोर्स जॉब की नेचर बदलेगा, जॉब के स्कोप बदलेगा, उसके साथ आपके खुद की इंटेलिजेंस भी बहुत हाई होना है. अगर आप अपने आप को इफ यू डोंट कीप इन टच विथ हाउ द इंडस्ट्रीज आर मूविंग, हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग, तब आप फॉल शॉर्ट जरूर करोगे. सो एक चीज, द रीजन मैं स्किप करके पहले यहाँ पे आ गई इज बिकॉज कि ये जो अभी सोच है ना कि हो सकता है कि हमको कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है. आपको सिर्फ ये देखना है कि हाउ कैन यू लर्न मोर, हाउ कैन यू लर्न न्यू थिंग्स मोर. और जो पुराने जो सोच थे वो चेंज हो रहा है, वो होता भी जाएगा, और उसके लिए आपको अडेप्टेबल होना है. तो ये अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस आर व्हाट इज गोइंग टू टेक यू. Another slide I'll just show you just for your information. I'll just keep it for a while for you to look at. These are the popular 121 AI skills which as per LinkedIn data is being tracked right now. तो सोचो, अभी already there are 121 skills that are being considered. Then think कि by the time you all actually graduate, how many more skills will come into play. So there's no end to anything new coming right now. हम लोग अभी बहुत एक exciting phase में हैं. तो अगर आप डरोगे नहीं और अगर आप वेलकम करोगे नए थॉट्स, नए वे ऑफ वर्किंग, नए थिंग्स टू स्टडी, you will see life is only going to get more and more interesting. So I'll take a pause there. I'll give you a few seconds to please go through this list because it will give you some amount of ideas as well. And after that, I'll take some more questions and then we'll go back to where we left off. Okay, I see there are 99 questions. So Mahesh, you can actually connect with me on LinkedIn because, for me, it's very difficult to actually, separately kind of communicate. But then, yes, I can definitely connect with you on LinkedIn. So
Python is a language, Prajapati. I'm talking about these are the popular AI skills right now. So don't mix up what you know. This is additional information. Dorado is saying, if AI take over us in future and try to manipulate, nobody's taking anybody over. It's all being, so understand something, artificial intelligence is artificial for a reason. It's not real intelligence. वहां पे ह्यूमंस ही है जो इतने इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, ये जो डेटा फीड कर रहे हैं, ये तो हम ही दे रहे हैं. What we are learning is how to manage all that. So one of the very important skill in the age of AI is prompt engineering. What is prompt engineering? It's nothing but asking questions. आप AI को जितना सही क्वेश्चन पूछोगे उतना सही आपको आंसर मिलेगा, और अगर आपको क्वेश्चनिंग स्किल सही नहीं है आपको आंसर नहीं मिलेगा. For example, let's not even go till AI. Think about Google. Google has been existing for years now, but best I can assure you that most of us don't yet know how to use Google. आप Google में भी आप अगर वेग क्वेश्चन दोगे आपको वेग थ्रेड्स ही मिलेगा, पर अगर आपको Google ठीक से यूज करना आते हैं तो आपको बैंग ऑन आंसर्स मिलेगा. तो क्वेश्चन जो है कैसे पूछना है, दैट इज नथिंग बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग is a key skill if you want to survive in the age of artificial intelligence. क्योंकि मशीन को आप जो सही पूछोगे आपको सही रिस्पॉन्स आएगा. So I'm sure you all are experimenting with ChatGPT right now, right? ChatGPT या फिर bard.com. You must be एक ही क्वेश्चन तरह तरह के पूछोगे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स मिलेगा. तो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर आपको वो टेक्निक्स नहीं मालूम होगा कि एग्जैक्टली क्या पूछने से मुझे क्या मिलेगा, that itself is becoming a skill now. So therefore you will see prompt engineering is a very important thing. By the time you all pass out of college, you must know prompt engineering. Without that you will not be able to go ahead at all, because सारे companies जो है आपका खुद का large language models बना रहे हैं. What they're doing is they're trying to see how artificial, ये जो LLM large language models are called, in short are called LLMs, right? अभी LLMs जब open AI होते हैं तब प्रॉब्लम ये होता है, वहां पे प्राइवेसी का प्रॉब्लम्स होते हैं. तो जैसे हर कंपनी का अपना बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होंगे, अभी वो डेटा अगर बाहर चले जाए तो देन कंपनीज विल बी एट रिस्क. सो व्हाट इज एवरी कंपनी ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू टेक एआई का जो मॉडल करके उसको टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, सो दैट हर कंपनी का खुद का वो मॉडल रहे जिसमें वो कंट्रोल टेम्परेचर में काम कर सके. इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी हाई क्योंकि आप जो टेक्निक है वो एआई का यूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पास वो सिक्योरिटी भी होगा ताकि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो बाहर ना चले जाए. ओके, सो नाउ अगेन आई हैव छेड़ोड अ ह्यूज टॉपिक. अभी इसको भी लेकर मैं 3 दिन बात कर सकती हूँ और क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आई विल गो बैक टू माई स्क्रीन, माई सिचुएशन, द slide that we were on. Okay, I think this is a very, very important slide that we should talk about. In today's day and age, actually ये always था, but आज के जमाने में और भी ज्यादा है, becoming a brand. आप खुद का ब्रांड अगर खुद बना नहीं पाते हो, you'll never be able to make a mark. Remember that. And what is a brand? जो आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन है, जो जिसके लिए क्या क्या चाहिए, आपका खुद का नॉलेज, आपका सर्टिफिकेशंस, आपके जो कमांड है, जो आपके सब्जेक्ट है उसके ऊपर, ये सब चीज आप जब बार बार सक्सीड करोगे उसके ऊपर बेस करके लोग आपको रेकमेंड करेंगे. दैट इज योर प्रोफेशनल रेपुटेशन. के लोग बोलेंगे अच्छा ये इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हो, इसके लिए तो ये बंदा है, इससे सही और कोई नहीं बोल सकता. सो दैट इज योर प्रोफेशनल रेपुटेशन. एंड नेक्स्ट इज योर विजिबिलिटी. हाउ डू यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ? अगर आपके पास बहुत स्किल्स है, बहुत नॉलेज है, पर आप जानते नहीं हो कि उसको कैसे बाहर की दुनिया में लेके आए, अगर विजिबिलिटी नहीं हो तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू मेक योर सेल्फ विजिबल, टू मेक योर सेल्फ कम आउट टू द वर्ल्ड. पर अगर उसके लिए भी आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपका विजिबिलिटी सही नहीं होगा. और जब आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन और विजिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दैट्स व्हाट विल क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड. और आज के जमाने में अगर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आप काम नहीं करोगे, आप डेफिनेटली दूर रह जाओगे फ्रॉम योर गोल्स.
please ask me questions. And in fact, I will not show you any more slides. So I'm open to taking questions now. Please go ahead and take, answer your, ask me your questions, please. I'll in fact stop share and let's get into a gallery mode. Can we please go into a gallery mode? Yes. All right. You can now please unmute yourself and ask me questions. और अगर श्रद्धा जी आपके पास है, Yes, ma'am. different, अच्छा, somebody is asking me difference between Alexa and Google Assistant. Listen, you are asking me very minute questions which is not helping. वो आप technically वो difference जानना चाह रहे हो, वो हम बात नहीं कर रहे, हम overall स्टूडेंट्स आप प्लीज है ना रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, ये हाँ. एलेक्सा और इनके ना हम अपने क्लास में डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस. Exactly. That is not going to help you. Can is AI and robotics is, of course, these are all good subjects, but like I said, these are all terms, right? AI बोलो, robotics बोलो, ये सारे बहुत vast subjects है. आपको खुद को थोड़ा research करना है. अभी मुश्किल ये हो रहा है ना, आप लोग वो एक एक terminology लेकर बहुत excited हो रहे हो. What is Alexa? It's a chatbot. What is Siri? It's a chatbot. इसके मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे असिस्टेंट बना सकते हैं, कैसे चैटबॉट्स बना सकते हैं, दैट्स अ फंक्शन. सो आपको थोड़ा रिसर्च करना है. और लाइक आई सेड कि आज के जमाने में रिसर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट यू हैव टू टेक टाइम आउट. इसके लिए अब अगर आप वेट करोगे कि कोई ना कोई टीचर आके हमको बताएगा हम सिलेबस, वो स्कूल में हो चुका है. अभी ऐसा नहीं होगा. अभी आपको खुद का लर्निंग के लिए भी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. कोई आपको हाथ आपके जरूर पकड़ेगा, पर वो हाथ के बिना भी आपको देखना है कि आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन आए. सो एवरी डे मेक श्योर दैट यू आर असाइनिंग योरसेल्फ 30 minutes or 1 hour instead of wasting time on Instagram and Facebook and all that. Invest an hour every day to do your own research. आप जो जो सब्जेक्ट के बारे में मुझे पूछ रहे हो, यही सब्जेक्ट आप जाके ऑनलाइन देखो कि इसके बारे में और क्या आपको पढ़ने को मिल सकता है. क्या व्हाइट पेपर्स है, बहुत सारी व्हाइट पेपर्स है. यू नो व्हाइट पेपर्स आर जो ये जो हर रोज का जो पीएचडी के लिए लोग पेपर्स बनाते हैं, या फिर कोई कंपनीज में व्हाइट पेपर्स बनते हैं जिससे आइडियाज फाइल होते हैं. ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इंटरनेट में आपको मिलेगा. लुक फॉर देम. जितना आप ये सब पढ़ोगे उतना आपके पास इंफॉर्मेशन होगा. एनीथिंग एल्स? Okay, so okay, Divyanshi is saying, ma'am, your voice is too good. Thank you for that compliment. Well, that is also part of non-verbals or rather verbal communication कि कैसे how to control your tone. आपके voice भी इतना ही अच्छा होंगे जब आप practice करोगे. Ma'am, can AI do? Okay, I'm not answering that. In that time, we have no topic to. In that time, we have no topic to search on internet. Well, that is, Shivam, that is because you're not thinking about the topics. आपके जो इतने सारे जो questions अभी है, आप उससे भी topic उठाइए, उससे भी आपको research करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. Okay, so since you're not asking, relevant questions right now, let me give you one more additional advice. LinkedIn, a very important, आज के जमाने में आप कोई भी जॉब में जाओ, कोई भी इंटरव्यू में जाओ, लोग आपके लिंक्डइन जरूर जाके देखेगा, ये देखने के लिए कि आपका प्रोफेशनल जो अपीयरेंस है वो क्या है. रिमेंबर, लिंक्डइन के लिए या फिर कोई भी, अंडरस्टैंड दिस, आप जो इतना एआई कर रहे हो, सब कुछ एल्गोरिदम में चलता है. कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लो, हर किसी का एक अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं, राइट? वैसे ही लिंक्डइन का भी एल्गोरिदम होता है. लिंक्डइन में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत लोग सोचते हैं जब मुझे जॉब ढूंढना है तब जाके मैं एक पोस्ट डालूंगी कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड देन नोबडी गेट्स अ रिस्पांस, एंड देन आके बोलते हैं लिंक्डइन तो काम ही नहीं करता है. ये सच नहीं है. नहीं आई. Please, guys, please don't discuss among yourselves, please. सो लिंक्डइन यूज करने के लिए अगर आपको सही तरीके से आपको वो एल्गोरिदम के साथ अगर दोस्ती करना है, 2-3 चीज करना है. वन इज, आप पहले ये समझो कि कौन से टॉपिक आपके लिए आप जानते हो बहुत अच्छा, जिसके बारे में आप बात कर पाओगे, सो दैट यू कैन मेक फ्रीक्वेंट पोस्ट्स. लिंक्डइन में अगर आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो एल्गोरिदम डज नॉट सपोर्ट योर पोस्ट्स. तो अगर आप अचानक साल में एक बार या 6 महीने में एक बार जाके एक पोस्ट डालोगे, उसका रीच ही नहीं आएगा, वो लोगों के पास पहुंचेगा नहीं. पर अगर आप लिंक्डइन में रेगुलरली पोस्ट करो, बट ऑफ कोर्स नॉट रबिश,
ओनली थिंग्स रिलेटेड टू जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर अगर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो तो उसका भी आप एक्चुअली एआई से हेल्प ले सकते हो. गो टू चैट जीपीटी or go to bard.com and write to ChatGPT that this is the subject that I want to talk about. Give me a plan, like a monthly plan to post on LinkedIn. It will give you host of topics related to आपका जो subject है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो. आप बोल रहे थे रिसर्च किस पे करना है, दिस इज अ टिप. आप एक्चुअली वो जो आपको जो सब टॉपिक्स देगा चैट जीपीटी या फिर जो भी, उसके ऊपर जाके आप अलग अलग से आप रिसर्च करो. आप देखोगे कि वो हर एक टॉपिक से आपको और 10 टॉपिक मिल रहा है. बिकम अ स्पेशलिस्ट लाइक दैट. हाउ विल दैट हेल्प यू? वन, इट विल हेल्प यू इन योर पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग. आपके लिंक्डइन का विजिबिलिटी बढ़ेगा, वो एल्गोरिदम आपके लिए काम करेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग के पास रीच कर पाओ. एंड इट विल ऑल्सो गिव यू नॉलेज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिसर्च कर रहे हो, जब आप चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली दैट इज गोइंग टू एड टू योर किटी ऑफ नॉलेज. और जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना आप पावरफुल बनोगे. जितना आपके पास पावर आएगा ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उतना आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन बढ़ेगा. And if your professional reputation is in place, then of course you're going to be a success. So that will be my tip today to help you get on your highway to success. And sorry, आज हमारे पास और टाइम नहीं है, नहीं तो हम और बात कर पाते. But मैम हम करेंगे बात आगे, आगे भी आपके सेशंस होंगे मैम फिजिकल मोड में जहाँ पे हम आपसे बात करेंगे. एक्चुअली कि अभी जो सारे सेशंस है ना एक ही दिन में 4 सेशंस है, तो वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट्स द रीजन. I understand, I totally understand, but it was lovely talking to all of you. All the best to all of you, and thank you for inviting me again. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, so for so much valuable session that you have given to our students. It was a wonderful session, and I think students enjoyed also. And बच्चों जैसे मैम ने बताया ना कि like आपको सबसे पहले अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनानी है अपनी, if you want to success in life. And उसके लिए बहुत सारी स्किल्स है जो मैम ने बताई है, like you need to have eye contact. आपके जो क्लोथिंग है that is very important. कि आपका जो लुक्स है, आपका जो इम्प्रेशन है, सबसे पहले लोग आपको आपके इम्प्रेशन से जानते हैं. 15 to 30 सेकेंड्स में वो पता कर लेते हैं कि आप वो एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंडसेट में कि आप किस तरीके से होंगे. तो आपको वो सारी चीजें अगर आप करते हो सही तरीके से, जिसके लिए हम आपकी सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी लगाएंगे कॉलेज कैंपस में, तो आपको ये डिटेल में नॉलेज मिलेगी कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. ये जो भी मैम ने जिन चीजों की बात करी है, विल हैव रेगुलर सेशंस ऑन दिस, एंड वी विल हैव गिव यू अ क्लास आल्सो ऑन दिस, ऑन सॉफ्ट स्किल्स. लाइक आपके टाइम टेबल में एम्बेडेड है, तो यू विल हैव अ डीप नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और जो मैम से आपने क्वेश्चंस पूछे हैं एआई रिलेटेड, ये हमें क्लास में हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज हम काफी सारी हम ऐसे सेशंस की क्लासेस लगाते हैं जहाँ पे आपकी क्वेरीज सॉल्व होती है. तो डू नॉट वरी अबाउट दिस. एंड मैम इट वाज अ वंडरफुल सेशन. स्टूडेंट्स से एंजॉय किया, स्टूडेंट्स ने आपसे क्वेश्चन पूछे, उनका इंटरेस्ट है काफी सारा इस चीज में. तो थैंक यू मैम, एंड विल डेफिनेटली कॉल यू My in pleasure. future for a physical session as well with the students. So Absolutely. yes ma'am, Thank you so much. Bye. thank you ma'am. Bye ma'am. Bye. Dear students, our next speaker have joined us. This is the last session for today. We are having Miss Rashmi Saha with us. Rashmi, are you there? Hi, Shraddha. Yes, I am Hi. here. So dear A very students, yeah, good afternoon, Rashmi. good afternoon, Shraddha. Am I audible? Yeah, you are audible. Let me check. Are you the co-host? पंकज, इनको co-host बना दीजिए please. Yeah, you are now the co-host, Rashmi. Yeah. Thank you. So dear students, our speaker have joined us. We have with us Ms. Rashmi Saha. She's a TEDx speaker. And before she shares valuable experiences with us, let me give a brief introduction about her. She is a free soul who believes in that idea that we all have something special to do for the society by simply understanding about ourselves and the surroundings. She's a civil engineer by education, a life coach, and an NLP practitioner. She's a social reformer by heart and a traveler by passion, a poet, Vogler by interest, and she have more than 14 years of experience. She is a TEDx speaker, REX Karamveer awardee,
She is also the founder of Mukti Mission, and she works on spreading awareness on menstrual and mental health from the last 5 years. And she have reached out to more than 2 lakh people from different walks of life, and through 500 sessions and guest invitations. So her motto is helping youth, working professionals and homemakers, connecting with their lives, transforming them, and helping them getting better with their emotional intelligence is her passion. Okay. So dear Rashmi, we would like you to interact with our students. So over to you. Thank you, Okay. Shraddha. Thank you so much for that beautiful introduction, and a very, very good afternoon, all of you. I'm not sure if you're able to interact, but I would love to have some response from you when I am talking. And I hope आपको हिंदी, English दोनों भाषाएं समझ में आती है. Rashmi, Yes, ma'am. you can use the mixed language, and students, yeah. if you want to interact, please write down in the chat. Okay, awesome. Yeah. कैसे हैं आप लोग? For everyone who is एकदम बढ़िया, आप बताइए। okay, ठीक है, अच्छी बात है. Can you please mute? क्योंकि अगर हम आवाजें हो जाएंगी सबकी तो बहुत ज्यादा chaos हो जाएगा. So it will be great if you can just respond on the chats, please. Okay? Great. Okay. So I understand that it is your very first step towards a professional life. Yes? पहला college, I believe most of you, school के बाद, right? And एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, एक नया एक नया मंजर शुरू होने वाला है. And thanks to the college that they have organized these sessions for all of you, so that you can learn more about how to be, what not to be. I'm sure all the experts have been guiding you अलग अलग चीजों में, अलग अलग skills में. अगर बता रहे आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी, right? मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिपीट नहीं करूं उन सारी चीजों को, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे लगता है कि कोई भी आएगा आपसे. ओके, सो आई एम गेटिंग अ रिक्वेस्ट कि मैम स्टार्ट अ सेशन विद अ पोएट्री. डेफिनेटली गिव मी सम टाइम, लेट मी जस्ट स्टार्ट द सेशन. उसके बाद मैं डेफिनेटली पोएट्री जरूर पढ़ूंगी. लेकिन मैं ये कह रही थी कि जो भी कोई एक्सपर्ट, जो भी कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान जब आपसे मिलेगा, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, ट्रस्ट मी, हर इंसान आपको शायद एक ही चीज बोलेगा कि अभी से अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दो. एंड दे ऑल विल बी राइट इन देयर ओन प्लेसेस. यू नो व्हाई? पहला रीजन कि दे आर कंसर्न अबाउट यू. दूसरा रीजन, उनको लगता है, और हम सबको लगता है, कि हमें शायद ये सारी चीजें नहीं बताई गई थी. वी हैड टू स्ट्रगल आवर वे थ्रू दिस, व्हिच यू ऑल विल आल्सो हैव टू डू. लेकिन हमें लगता है कि हमने जो चीजें सीखी, हमें जिस चीजों ने हेल्प करी, हम वो क्यों नहीं अपने आने वाले जनरेशंस के साथ भी शेयर करें. ऑल्दो यू पीपल आर प्रोबब्ली स्मार्टर देन अस, यू पीपल हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड विजन ऑफ योर लाइफ. दूसरी चीज, आप लोग टेक्निकली हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, राइट? आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं. सो हमें लगता है कि अगर हम अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, you mixing it with your understanding, your knowledge, I think you can do wonders. So whoever you're going to meet, an expert or an experienced person, वो कुछ चीजों में आपको हमेशा बोलेंगे, और ये चीज बहुत challenging हो जाती है after a while. The first thing is communication, the right kind of communication. और communication सिर्फ अंग्रेजी में बोलना या हिंदी में बोलना नहीं होता है. Always remember, कुछ लोगों को लगता है कि communication is all about being a good speaker. हमेशा याद रखना, it is not about how good speech you can give, but communication is more than just speaking well. Communication is also being a good listener, a respectful listener. तो अगर आप बोल सकते हैं अच्छा, लेकिन अगर आप किसी को सुन नहीं सकते हैं, ये शायद बाद में आपको बहुत ज्यादा आपके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. So take care of that, And also when you speak, it's about how well you communicate. आप अपने भावनाओं को, आप अपनी बातों को, आप अपने इंफॉर्मेशन को कितने इम्पैक्टफुली सामने वाले को समझा पा रहे हैं, उनके दिमाग में एक जगह बना पा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. हाँ, सामने वाला समझे नहीं समझे ये उसका चॉइस है, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटी समझनी है, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. ट्रस्ट मी, सिर्फ अच्छी वोकैबुलरी, सिर्फ अच्छा इंग्लिश या सिर्फ अच्छी हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज इज नॉट इनफ. It is also about your tone. It is also about the modulations that you use. It is also about, आपके emotional expression क्या है. And very important,
आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये चीज आपको हर कोई बोलेगा कि बेटा अगर आपको जॉब चाहिए, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो योर कम्युनिकेशन हैज टू बी गुड। ओके, ट्रस्ट मी, पीपल विल से दिस। दूसरी चीज होती है, यू नो, हाउ वेल डू यू कनेक्ट विद पीपल, नेटवर्किंग। हम सोशल नेटवर्क के जमाने में जी रहे हैं, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन सोशल मीडिया? टेल मी, just write 10 if you're on social media, or if you're on Instagram, write I. If you're on Facebook, write F, or you know, if you're on LinkedIn, write an L. Come on, tell me. I need to know. I need to know. आप कौन कौन से सोशल मीडिया, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हैं, सबका नाम मेंशन कीजिए। ओके ओके, सो मोस्टली ऑन इंस्टाग्राम, राइट? ओके, सो पीपल आर ऑन FB, Telegram also, right? Very good, very good. Thank you for replying. Thank you so much. Okay, great. So if you are on social media, you can connect with me also. LinkedIn mein you can find me with Rashmi Saha, RASHMISAHA, and you can connect with me there. Or Instagram pe, if you want to connect, Instagram pe rashmisaha.happysoul. Okay, Facebook pe same. Now, when we talk about networking, there is something called professional networking. Always मैम understand फॉलो that. बैक कर दीजिएगा, Sorry? फॉलो बैक कर दीजिएगा मैम। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ओके, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, इन योर प्रोफेशनल लाइफ द सोशल नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट अबाउट liking post, it is not just about entertainment. Now थोड़ा सा एक एस्पेक्ट उसमें लर्निंग का भी ऐड करना पड़ेगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने इंटरेस्ट के जितने लोगों से मिलेंगे, यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? अपॉर्चुनिटी। नॉलेज तो ठीक है, आपको शायद कहीं और से भी मिल जाए, बट नेटवर्किंग का बेस्ट तरीका होता है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग सोशल इंटरेक्शन से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए और वहां पर अपॉर्चुनिटीज में इन्वॉल्व हो, अपॉर्चुनिटीज में इंडल्ज हो। अच्छा, एक सिंपल सा बात बताओ, लेट्स से इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ यू, ओके, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गिव टू समवन, इट कुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, or it could be an award, or it could be, you know, एक छोटा सा एक गिफ्ट ही देना है आपको। आप मुझे एक बात बताओ, आप वो किसको देना चाहोगे? जिसको आप पहले से जानते हो, जिसका काम आप पहले से जानते हो, या जिसके काम में आप कनेक्ट कर पाते हो, या फिर एक कंप्लीट स्ट्रेंजर? टेल मी, फर्स्ट और सेकंड, आई वांट योर आंसर्स। जो हमारे सबसे करीब होगा। नहीं, करीब है लेकिन अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो चलो ठीक है, करीब है इज वन थिंग। ओके, जिसको हम चीज जानते हैं, someone you know, right? Someone whom you understand कि अगर इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या अवार्ड या फिर अपॉर्चुनिटी दी गई, this person can do justice. As simple as that. Awareness. So make yourself known to people. The more people will know you, the more people will get to know your skills, the more people they will, you know, connect with you, the more trust they will have on you. और वो जिस पे ट्रस्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज उसको ही देना चाहेंगे। ट्रस्ट मी, ट्राई करना, अभी बहुत टाइम है आपके पास ये चीज सीखने के लिए। आज इस चीज को समझिए। हाँ ठीक है, मानसी ने कहा कि केपेबल पर्सन, बट हाउ विल यू नो द पर्सन इज केपेबल? ओनली व्हेन यू नो अबाउट दैट पर्सन, व्हेन यू सी दैट पर्सन वर्किंग, और यू नो समथिंग अबाउट, राइट? सो सोशल नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट making yourself, your skills available to people. So this is something that people will talk about. Okay. एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। कितने लोगों ने सुना है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में? सुना है आपने? यस मैम। ओके, कोई मेरे को बता सकता है कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? एनीवन? Conscious of being conscious. ओके, ठीक है। Anything else? Simple, in very simple words, knowing about yourself, as Shivam said, right? Knowing about yourself, self awareness. अब ये बात करते हैं कि क्या सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होता है? क्या जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस? क्या खुद को जानना इज इंपॉर्टेंट? यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You know, it is very important to know yourself. You know why? Especially in this phase of your life. अभी देखो, आप लोगों को एडमिशन मिल गया कॉलेज में, ठीक है?
अभी तो फर्स्ट ईयर विल गो विथ ऑल फन एंड हैप्पीनेस एंड लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कॉलेज लाइफ, जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर विल ऑलवेज बी स्पेशल. अच्छा, किसी को ये पता है कि मैंने क्या पढ़ाई करी है? व्हाट इज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड? किसी को पता है? नो? कैन यू मेक अ गेस? आप गेस कर सकते हैं? सिविल इंजीनियरिंग. Wow, someone did a research. Very, very good. Who was it? Very nice. Yes, I Me. am also an engineer, right? I'm also an engineer like you, most of you. Okay. So what I'm telling you, the first year is all about exploring yourself. हम लोग अलग-अलग background से आ रहे हैं, अलग-अलग social, educational background से आते हैं, अलग-अलग school से experiences से. College एक बहुत interesting experience होता है, ठीक है? So first year will go in learning about yourself, environment, your course, everything, exams, lifestyle, fun, making friends, But धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मैं सच बता रही हूँ, चीजें बदलती जाएंगी. और पता है सबसे ज्यादा चीज कब बदलेगी? When you'll get the real shock of your life. Can anyone tell me? सबसे बड़ा शॉक कब मिलेगा आपको? Make a guess. Make a guess. Can you repeat, ma'am? The first shock, the first realization that you will get in your life after degree? नहीं. After degree नहीं. नहीं, after college भी नहीं. College में ही रहते रहते 4 सालों में you will get a moment of realization, a moment of shock. When everything will be going happy. एक moment आएगा जब आपको लगेगा कि okay, pause right here. And that moment will be when the first person get internship. Yes, but more a bigger shock, when जब पहला इंसान आपके ग्रुप का या आपके फ्रेंड सर्कल का या आपके ब्रांच का, जब उस इंसान की पहली जॉब लगेगी, मतलब सबसे पहले जिसकी जॉब लगेगी, एंड यू विल बी लाइक, अरे इसकी जॉब लग गई, कैसे लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी, या फिर where did I go wrong? And that is the moment when you start actually thinking about yourself. If you are not thinking right now, or you will not be thinking about it before. Okay? So always remember, these things will come, these moments will come in your life. It's always good to keep yourself prepared. Competition बहुत बढ़ता जा रहा है. Competition is growing like anything, Everyone is preparing. हो सकता है कि आपको आपके साथ लोग घूमते फिरते मस्ती करते हुए नजर आए, लेकिन you never know who is preparing for what. किसकी बात समझ में आ गई या लग गई, और किसने किसका गाइडेंस फॉलो कर लिया, एंड प्रोबेबली दे अपीयर्ड फॉर एन एक्स्ट्रा कोर्स जो उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि यार मेरे दोस्त तो समझेंगे नहीं, मेरे फ्रेंड्स तो समझेंगे नहीं, तो ठीक है मैं ना खुद से ये चीज अपने आप ही कर लेता हूँ. सो ऑलवेज रिमेंबर, एवरीवन will be probably working on themselves. जो शायद वो बताए नहीं बताए, and they are not responsible to tell you. So think about yourself. And when I talk about yourself, this is where the self-awareness part comes in. In between all the fun, happiness, and learning, please make sure that you start learning about yourself also. What are your strengths? How many of you know what are your strengths and weaknesses? Resume में तो लिख दिया होगा या लिख दोगे आने वाले टाइम पे. But always remember, resume में पहले तो लिखना नहीं लिखा जाता है strength and weaknesses. प्लीज अगर कभी ये सेशन होगा तो मैं श्रद्धा से बोलूंगी कि रेज्यूमे राइटिंग की भी आपको सेशंस करवाई जाए, ठीक है, और वो होंगी, डेफिनेटली होगी. रेज्यूमे में प्लीज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू नो व्हाई? बिकॉज नन ऑफ द रिक्रूटर्स विल आस्क यू कि बेटा आपका स्ट्रेंथ क्या है बताइए. नो, वर्बली तो मैं भी बोल सकती हूँ आई कैन फ्लाई, लिखने का तो मैं भी लिख सकती हूँ, बट नो, दैट्स नॉट इट. Every recruiter will see your strength in you, the way you express it, the way you carry it in yourself. So how many of you know your strengths and weaknesses? Very honestly, tell me. Do you know? If not, think about it. Think about it. कि अगर कल को you are working on yourself, no strength ऐसे नहीं होता समीर. हर इंसान के पास कोई ना कोई खूबी होती है, हर इंसान के पास कोई ना कोई सुपर पावर होता है. यू जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट. इसलिए तो कह रही हूँ, इंट्रोस्पेक्ट. ओह, माउंटेन ऑफ वीकनेसेस, ऐसा कुछ नहीं होता है. there are no weaknesses. First of all, I should tell you, there are areas of improvement. जो भी हमें वीकनेस लगता है ना, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर हम वर्क कर सकते हैं. ओके, I don't know my weakness, but I don't know the strength. कोई बात नहीं शिवम, you can always work on finding your strength. That is why I'm saying
self-introspection. Okay, work on it. Okay, speaking English is my weakness. Acha, theek hai. So this you can work on it. Ayush, you can always, आराम से. उसके भी तरीके होते हैं. Definitely, you should guide it well. Work on your, area of improvement, I would say. Okay. Ma'am, what is the most appropriate answer if an interviewer asks you when you need this job? हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल डिस्कस करेंगे. आई रियली होप दैट आई कम हियर अगेन समडे व्हेन आई डिस्कस इंटरव्यू स्किल्स, डेफिनेटली. लेकिन अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको खुद को समझना. जब आप खुद को समझने लगेंगे ना, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा. अदरवाइज आई विल डेफिनेटली टेल यू the best answer, the most appropriate answer is that, you should not express anything that makes you look like you're incapable of performing that responsibility. That is the most appropriate answer. So weakness बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? Anyway, coming to self-introspection, self-knowledge, always remember, you have to start working on yourself. Okay? आपकी qualities क्या हैं? आपके skills कौन-कौन से हैं? कौन कौन से स्किल्स जरूरी है एज अ प्रोफेशनल. लेट्स से यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और सिविल और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाटएवर बैकग्राउंड यू आर, आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं. कनेक्ट विथ योर सीनियर्स, आस्क देम what is going around in the market, industry में चल क्या रहा है, industry norms क्या है, because every 5 years things change. बहुत सारी चीजें बदलती हैं, ठीक है. सो द बेटर you will work on yourself, the better you will know about yourself, you will be able to work, identify these areas and be able to perform better than other students, your fellow students, ठीक है. And all this will always lead to one very important thing, that is your mental and emotional health. Do you think if you get a job, or if you get placed, or you create your own your own entrepreneur journey? Acha, how many of you want to be an entrepreneur or are already an entrepreneur? Who are already into some creation or business, or who are earning money, in the right way. Okay. Lot of you, like I'm sure, Sameer wants to be an entrepreneur. Okay. Okay, there is a very important question जिसको बहुत सारे reactions मिले हैं. Wow, I like it. So अमन ने पूछा है, I want to answer this question. अमन ने पूछा है, ma'am, what is the real meaning of strength? Okay, strength, literal meaning हम सबको पता है कि what is strength? That's something that makes you feel stronger. Now, when I talk about skills, when I talk about qualities, those attributes which makes you feel confident about yourself, where you know that you can talk about yourself to anyone, जिसके बारे में अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम भी बता रहा है, that you're not good at it, you don't get angry. नहीं, I know that, okay, fine. हो सकता है आपको, जैसे कि okay, simple सी चीज बता रही हूँ. Let's say I'm a very rich person. Let's say I'm not, but let's assume for a moment that I'm a very rich person. And I know my financial status is my strength. कि कैसे strength है, कल को अगर मुझे कहीं पर भी अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं मांगना होगा, मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा. I can avail anything and everything, right? अब इस केस में अगर कोई आकर के मुझे ये बोल करके जाता है कि अरे तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है वो चीज मुझे बुरा फील कराएगी? नहीं फील कराएगी. क्यों? क्योंकि मैं उसको बोलूंगी कि you don't know about me, but I know my financial status, right? So तुम पे मैं शायद हंस दूंगी, ठीक है. Similarly, it's about the strength also. Let's say your confidence is good communication, or your strength is good technical knowledge. Your strength is, being a very positive person. तो अगर कल को तुम्हें कोई इसके बारे में डिमोरलाइज भी करने की कोशिश करता है, यू विल ऑलवेज फील वेरी वेरी कंफर्टेबल कि ठीक है, इससे मुझे अफेक्ट नहीं होगा, इससे मुझे कोई बुरा फील नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो दिस इज माई स्ट्रेंथ एंड आई कैन बी अ गुड स्पीकर एंड आई कैन अवेल गुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस. You can use it to grow. You can use that strength to help you grow. This is what is the real meaning of strength. That's what I believe in. Okay, so this is what I wanted you to know about self-awareness. Please do spend some time
अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, नोइंग योरसेल्फ। क्योंकि ना जब ये चीज ना स्ट्रेंथ में तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कभी कोई आपकी खामियां निकालेगा, जब गलतियां करेगा, तो आप जब गलतियां करोगे या आपसे कोई गलती होगी या फिर आपसे कोई नेगेटिव इंसान मिलेगा और जब वो आपकी गलतियां निकालेगा ना, तब ये चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। एंड दैट इज व्हेन यू रियली नीड टू नो दैट दिस प्रॉब्लम actually exists in you, or the other person is just trying to demoralize you, so that it can help you maintain that emotional quotient that you need. Okay? Okay? So this is something. Next, what I wanted all of you to understand is working on yourself, working on your personality. When I talk about personality, देखो पढ़ाई तो आप कर लोगे, डिग्री तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, knowledge आप gain कर लोगे, practical knowledge, everything will, obviously that is why you have joined the college and the organization. But when you will be actually working with people as a boss, as an employee, as a colleague, in whatever capacity, trust me, getting through that opportunity will require more than just your degree, more than just your communication. There'll be a lot of other things. So always remember certain things that you need to take care of. Your personality. And when I talk about personality, आपको क्या लगता है? What do I mean when I say personality? क्या होती है personality? किन किन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए अगर मैं personality की बात कर रही हूँ तो? Aura, wow, I like that answer. Aura, very important. Your energy, yes. Communication, body language, okay. The darker side, okay. Interesting. Build confidence. Dressing sense, okay. Self-growth, okay. Okay, ठीक है. बहुत सारे answers आए. Very good. So when we talk about your personality, you have to understand there are certain attributes which define you and your personality. सबसे पहले हम विजुअल की बात करते हैं. एक बात बताइए, आप जब किसी को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं है, ठीक है? When you see someone, like you saw me for the first time, right, Abhi? So what did you see and what did you observe? You probably observed the way I look, right? The clothes that I wear, how well groomed I am, right? My attire, my body language. Thank you, Divyansh. Thank you so much. Yeah. So so whenever you see someone, the first thing is your visual understanding of the other person. उसमें personality कैसे define होती है आपकी? By the clothes that you wear. Your attire plays a very, very important role. Always remember this. Okay. Rings in hand. Yes. Good observation, Rohan. Very good. Okay. So always remember your personality. आप भी देखते होगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे जाते होंगे, कुछ लोग के कपड़े पहनने का तरीका बड़ा अच्छा सलीकेदार होता है, ब्रांडेड हो नहीं हो, लेकिन जो भी कपड़े वो पहनेंगे they will look very smart. हम कहते हैं ना कितना स्मार्ट दिख रही है या स्मार्ट दिख रहा है सर, मैम या फिर कोई colleague. It is most of the times based on their attire. Very simple or very, classy clothing, appropriately done, good colors, soothing colors, or, even vibrant colors sometimes look nice, but usko properly aapne kis tarike se organize kara hai. ठीक है? So your dressing is very, very important. Second is your grooming. Grooming में क्या चीजें आ जाती हैं? The way you keep your hair, the way you keep your health and hygiene. Your physical hygiene is very, very important, The way you smell, the way you look. आपके बियर्ड बड़े हुए हैं तो आपने उसको ट्रिम किया है, नहीं किया है, या वो बस बढ़े जा रहा है खुशी खुशी, हाँ, बाल है तो हमने उसको कंघी करा है, नहीं करा है, आर वी वॉशिंग इट प्रॉपरली? बिकॉज समटाइम्स व्हाट वी हैव अ टेंडेंसी कि वी गो लेजी एंड ठीक है चलता है. लाइक आई कैन सी nails, exactly, nails. I can see Priyanshu's DP here, okay? So I'm on a mobile, so I'm not able to see a lot of participants here. But one thing definitely, Priyanshu, I can tell about you here is, if at all you can see his picture, the way his hair is groomed, that is what is called
a groomed hair, I would say. उसने तो जेल वेल लगा करके बहुत अच्छे सेट किया है, but Priyanshu, if you really maintain this every time, every day, trust me, very good, very, very good. And I think people should take inspirations from you, from this picture, definitely. Okay. So this is what grooming is: keeping your hair tidy, your body, your nails, your socks, everything. So this is about your personal care. This is about your grooming. Okay. Aman, nahi, Aman, iska koi reason nahi hai. This is just my statement. This is how I'm known. Okay. Anyway. तीसरा जो चीज है, after your dressing and your grooming, what is the most important thing? Can anyone tell me? आपकी personality में तीसरा कौन सा बहुत important चीज है? कोई बता सकता है मुझे? जो लोग notice करते हैं, way of talking, okay, yes, way of talking is there, but I'm gonna come to it, okay? Way of talking में मैं आऊंगी. Physical fitness, yes, very important. Physical fitness is very, because अच्छा, एक सेकेंड, फिजिकल फिटनेस को ना प्लीज आप डोले शोले में कंफ्यूज मत करना. ओके, फिजिकल फिटनेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन दी एनर्जी. अभी किसी ने ऑरा की बात करी थी, दैट इज व्हाट इज अबाउट योर फिजिकल फिटनेस. व्हेन यू आर अ फिट पर्सन इनसाइड, यू एक्सप्रेस इट नाइसली. एंड जैसे सब लोग फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, you will be happy to meet a physically fit person. Trust me. And when I say physical, it is not just your body, it is also your mind. Always remember that. जो यहाँ से clear है, यहाँ से खूबसूरत है, यहाँ से fit है, यहाँ से दिल से, दिमाग से, and then body से, trust me, उस इंसान की aura ही अलग होती है. उस इंसान से मिलके ही आपको बहुत different लगेगा. Okay? So this aspect of your physical fitness is also very, very important. But I'm what still is the aura? Aura is your energy. Aura is your energy, your vibe that you carry with yourself. ठीक है? मतलब इसका ये लेमैन अंडरस्टैंडिंग है. वैसे हम कहते हैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, ऑरा का ये होता है कि हमारे जो आसपास, जो हमारी जो काया होती है, जो कहते हैं, ठीक है, वो उसको ऑरा कहते हैं. जो एनर्जी दैट वी कैरी अलोंग विद अस, दैट इज योर ऑरा. अब देखो, सिंपल से एग्जांपल दूं. कभी कभी देखो, अगर देखा होगा, कुछ लोगों से ना बिना बात किए, मिले ही, आप अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक स्पेस में हो, कुछ लोगों के आसपास रहो, उतने में अच्छा लगता है. कुछ लोगों के साथ आपको ना अजीब सा रिपल्शन महसूस होगा. कुछ लोग घर में आते हैं, देखो, योर होम वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन दे लीव, एंड समटाइम्स व्हेन पीपल कम, दे लीव अ वेरी ग्लूमी फीलिंग, वेरी सैड फीलिंग, वेरी इरिटेटिंग सा फीलिंग. लगने लगता है कि कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज. ओके, द एनर्जी दैट यू कैरी. कुछ लोग देखो, कुछ टीचर्स होते हैं, रूम में ऐसे एंटर करते हैं, बी हैप्पी, यस आज मैम आ गई, सर आ गए, क्यों? क्योंकि वो ऑरा कैरी करते हैं वैसे वाला, वेरी हैप्पी. सो मोस्टली टीचर्स, तुम देखना, उनमें वो ऑरा होता है, बिकॉज because they deal with people, so they need to maintain that aura, because they meet with a lot of people. Anyway, well, let's not get into details. What we need to understand here is हमारा aura, हमारा attitude is also very important. हम जिस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, हम जो डिस्प्ले करेंगे, हमें बहुत बार वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है. ये चीज इंटरव्यूज में हमेशा याद रखना. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इंटरव्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रोल. द इम्प्रेशन दैट वी आर गिविंग, most of the times that is the impression that we're receiving, also the treatment that we are receiving. Okay, so that is what. बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं, जल्दी बताओ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी लैंग्वेज. डू यू थिंक बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट? अगर किसी ने लिखा होगा तो मैंने मिस कर दिया होगा. हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, द वे यू सिट, द वे यू वॉक, द वे यू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. Everything is included. That is your personality. कुछ लोगों देखो, वो बैठने का तरीका लगता है कि वाह कितने स्मार्ट है. कुछ लोग ऐसे हमेशा ऐसे ना, ऐसे पड़े हुए दिखते हैं, अच्छा लेजी से हैं. वो अंदर कितने एनर्जेटिक हो, लेकिन वो ऐसे ऐसे स्लाउच करके बैठे रहेंगे. तो जैसे स्लाउच करते हैं तो हमें लगता है कि दैट पर्सन इज सिक, और द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, नॉट लेजी. हम बातें कर रहे हैं किसी से, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं है, हमारा ध्यान हमेशा ऐसे है, क्या ऐसे है, बोलो ना, हाँ बोलो, ऐसे हम बात करते हैं, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते ना सामने वाले के साथ. तो सिमिलरली योर बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड द मोर, द बेटर यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ,
इसका फायदा सामने वाले को तो होगा नहीं होगा बात की बात है, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। यू नो व्हाट, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने कॉन्फिडेंस को ना इतने अच्छे से उसका वो लेवल मेंटेन कर पाओगे। यू नो व्हाई? बिकॉज आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे, you will get good attention from people, you will get good response from people, people will be nice to you. अच्छा एक बात बताओ, जब आपके साथ कोई अच्छे से बात करता है, do you feel confident or not? Yes or no? Do you feel confident when someone is good with you? Yes, 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 yes. Most of us, every one of us. Exactly. तो एक बात बताओ, अब अगर हम अच्छे से बिहेवियर नहीं हमारा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से नहीं है, हम लोगों को रिपेल कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, तो ऑब्वियसली बात है ना, सामने वाला हो सकता है हमारे साथ अच्छे से बिहेव ना करे या सामने वाला हमसे रिपेल करे। ठीक है? थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉमेंट। ठीक है, या सो व्हेन ever we are treated nicely, we feel good. But a lot of times we need to understand that we are the reason why we are attracting the goodness or we are attracting the negativity. हम अगर लोगों से अच्छे से बात करेंगे तो जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। हाँ, बहुत लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी ना, यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी। अब एक बात बताओ, इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कैन यू शाउट एट समवन की नहीं मेरी इज्जत करो, मेरे अच्छे से बात करो? किसी को डरा के इज्जत लिया जा सकता है क्या? मुझे ये बात बता दो, क्या किसी को डरा के, किसी को रिपेल करा करके या किसी के सामने अग्रेशन दिखा करके, पावर दिखा करके, क्या हम रियल लॉन्ग लास्टिंग रिस्पेक्ट किसी से पा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, राइट? सो इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, you don't have to do anything. You just have to love yourself, respect yourself, your behavior, your attitude. And then trust me, everyone who has sense, who can see things, who can understand things, will definitely respect you. उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, आपको किसी के सामने आवाज ही नहीं ऊंची करनी पड़ेगी, किसी को चिल्लाना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा अरे मैं कौन हूं तुम नहीं जानते हो, ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। You know, so your personality can do wonders in your life, and these small things. Okay, do you have any questions so far? हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, कोई सवाल है आपके पास तो मैं डेफिनेटली आंसर देना चाहूंगी, because I see it's a very interactive audience and I'm so happy for all of you. I would want to, just applaud all of you and, thank you for being so interactive. मुझे लगा था कि पता नहीं बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आई वाज रियली स्केप्टिकल, श्रद्धा से मैं पूछ रही थी, बट आई एम सो हैप्पी दैट एवरी वन ऑफ यू इज so happily interacting. Thank you. आज So तक का सबसे बढ़िया क्लास यही है मैम। oh my God, thank you so much. Thank you so much. You can please, write all this to me, and you can share these words in whatever platforms I've shared. आप LinkedIn में या फिर कहीं पर भी मुझे ये words अगर लिख देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, And in fact, I'm asking you. मेरा वेबसाइट है rashmisaha.com, ठीक है? उस पेज में जब फर्स्ट पेज में जाएंगे, नीचे लास्ट में there is a section जहाँ पे you can share your experiences with me and I'll be more than happy, or LinkedIn. Okay. Anyway, do you have any questions? Anyone has any questions? Instagram. Sorry. Instagram. Okay. Instagram. अच्छा, rashmisaha.happysoul. Okay, there is a question. Okay, I see a question. Most important thing to start a startup. Okay, so कुछ पॉइंटर्स हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? सबसे पहले तो योर आइडिया यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। उस आइडिया के साथ ऑलवेज अंडरस्टैंड, आर यू अटैचिंग योर स्किल्स विद दैट, योर विशेस विद दैट, योर like dream with that, or you're attaching a very strictly business mind with that. Okay, क्योंकि you have to have a reason कि आप वो स्टार्टअप क्यों कर रहे हो। कुछ लोग इमोशनल रीजंस की वजह से करते हैं, कुछ लोग बिजनेस रीजंस की वजह से करते हैं, कुछ क्योंकि बस सब कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट स्टार्टअप? ओके,
पहला चीज। दूसरा, मार्केट सर्विस, स्टडी, प्रॉपर नॉलेज। उसके बाद इफ यू वांट टू वर्क विद अ टीम, गुड इनफ। इफ यू डोंट, ओके ओके if you want to work with a team, it's good. If you don't want to work with a team, that is also fine, but make right decisions. ठीक है? Have mentors. अपने पास ना 2-4 ऐसे लोग रखिए जो आपको प्रॉपरली गाइड करें, जो आपको समझते हो, आपकी खामियां भी बता सके और आपको सही तरीके से गाइड भी कर सके। वो लोग नहीं जो हर बात पे सिर्फ ज्ञान देते रहे, नहीं, ज्ञान को भी लीजिए, बट हैव मेंटर्स। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप स्टार्टअप शुरू करें, रिसोर्सेस कहाँ से आने वाले हैं, पैसा, लॉजिस्टिक्स, पीपल, वो कहाँ से आने हैं, प्लीज सॉर्ट दैट आउट एंड ऑलवेज हैव अ बैकअप, ऑलवेज हैव अ बैकअप। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी मैटर्स, क्योंकि ना बहुत बार चीजें ऊपर नीचे होंगी, आपके कॉम्पिटिटर्स आएंगे, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट देयर। ओके, रिमेंबर दैट। आई होप आई आंसर्ड यू वेल. इट वाज अ वेरी शॉर्ट आंसर, बट या, how can we okay interact with anyone? How can you interact with anyone? You should just start. वॉइस नहीं आ My voice is not audible. Hello. Rashmi, are you there? आई थिंक बच्चों मैम अभी ज्वाइन कर लेगी दोबारा, उनका लीव आउट हो चुकी है। शील ज्वाइन बैक, वेट फॉर सम टाइम। I guess I got lost for a moment, right? Am I audible now? Yeah, you are audible, Yes, Rashmi. ma'am. Yes. Okay. Okay, and I have lost all the chats also. Okay, all the questions also. I'm so sorry. Okay. For this is important to having good peer group. Yes, it is very, very, very important. Trust me. हर टाइप के ग्रुप्स रखिए जिसमें मस्ती भी कर सके, सीख भी सके, जिनके साथ आप विजन भी आगे शेयर कर सकें, प्लीज। इसीलिए कहा ना, नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल अराउंड यू. इट विल हेल्प यू, इट विल एनरिच यू, यू नो. मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ स्टूडियस लोगों के साथ रहिए, क्योंकि उनके साथ आप रहेंगे तो फिर शायद स्ट्रीट स्मार्ट, I'm not generalizing, but I'm saying, you need to be street smart also. You need to you need to know things around going you. You need to have a vision also. You need to know about the latest updates also. So have people in your circle of all sorts. Okay, ma'am, skill पे work करना is the most important or not? Very very important. मैं सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ. The more skillful you are, the more confident you feel about yourself. Trust me. हर जगह शायद अपना स्किल्स आप दिखा नहीं पाए, और जरूरी भी नहीं है, but that knowledge itself makes you so happy about yourself, so confident about yourself. Okay? और जब मौका मिलेगा तो ठीक है, आप डिस्प्ले भी कर लेंगे, तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छा इसको ये भी आता है, अरे वाह क्या बात है. You know how to ignore anyone without making him feel ignored. Okay, so ignoring से ज्यादा मुझे लगता है, limiting the interaction is good. Ignore is a negative word for me. अच्छा, तो ignore करने के बजाय you can limit the interaction. You can still interact with the person, but जहां आपको लगे कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं, तो आप अपने आप को लिमिट कर लीजिए. ठीक है? ओके. ओके, और क्वेश्चंस क्या है? हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, तुमने बता दिया. मैम, फॉर डूइंग द बेस्ट इन आवर करियर, आई थिंक जॉब्स आर नॉट इनफ फॉर द बेस्ट लाइफ. ओके, आई टेल यू व्हाट, Anshika, the best part that your generation is having, you guys don't have to depend on jobs only.
now you are like, you're so lucky कि the idea of entrepreneurship, you know, freelancing or working because I mean earning through skills, ये सारी चीजों को इतना encourage किया जा रहा है कि आपको jobs की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको job वाले career में भी जाना है, if you want to work for someone, a company, or you want to grow, trust me, they are also wanting the right candidate with all the skills, with that balance, with with that confidence. So if you have it, if one has it, they will find the place. Trust me, they will. Trust me, they will. So ये मत जाइए कि 10 ही वैकेंसी क्यों है या एक ही वैकेंसी क्यों है. ऐसा सोचिए कि वो वैकेंसी मेरी क्यों नहीं है और वो वैकेंसी मेरी है. Change your perspective, no? Ma'am, for doing the best. Okay. But we are only by judging their marks. नहीं, that is not the right way. नहीं सचिन, मार्क्स को जज करके आप किसी को नहीं जज कर सकते हैं कि गुडनेस इज नॉट ओनली अबाउट योर मार्क्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द विजन, इट्स ऑल्सो अबाउट आप अपने मार्क्स के बियॉन्ड भी सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं. आर यू विजनरी और नॉट, ये तो कम्युनिकेट करके ही पता चलेगा. ठीक है. I trust people. There are signs that indicate that I should continue with, especially when हाँ, ठीक है. Okay, ठीक है. Samir has a very interesting question. I trust people quickly. These are signs that I can. Are there signs? ठीक है. So trusting is okay, good. It's okay. It's a good thing for you. But आप कैसे कर सकते हैं कि इंसान का कमिटमेंट खुद के लिए कितना ज्यादा होता है. ठीक है. मुझे लगता है I judge a person the way they treat themselves and they treat others. So always see that. अगर वो balance है कि इंसान खुद को जैसे treat कर रहा है, दूसरों को भी वैसे treat कर रहा है, that is a very, very important quality. That shows the commitment of the person. That shows that person is just, justice में believe करता है. तो वो ज्यादा इंसान ना गलत नहीं कर सकता किसी के साथ. दूसरा चीज, how good a person is with the emotional quotient, emotional intelligence. कहीं वो ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ा या impulsive decisions तो नहीं बना रहा है. क्योंकि when you're making partners or when you're working with them in your startup, बहुत सारे low moments भी आने वाले हैं. So just see how a person deals with the low moments. That is something very important. Okay. And skills तो है ही, आप वो तो आप देखोगे ही देखोगे. But these are very important things that you take care of. And yeah. Okay. Great. So I see a lot of questions coming. I'm so happy. If you want to stay connected with me, you can also connect with me personally or whenever, or I'd love to reconnect again, with Shraddha's help and support, we can meet again. Meanwhile, I believe a poem ki request aayi thi. So are you interested? Shraddha, do I have the permission to share this poem with these people? Yeah, you can share. Yes, definitely. Are you guys ready? You want to listen? Okay. So I have this poem about life that I have written. Zindagi. Okay. जिंदगी ही तो है, जी भर के जी लो, बाकी सब रहने दो. दिल है तो चोट भी लगेगी, दर्द भी होंगे, आंसू भी होंगे. जख्मों को एक दिन बैठ के हिम्मत से सी लो, बाकी सब रहने दो. उम्र ही तो है, बढ़ती ही जाएगी. बचपन भी लेकिन कभी कभी मुस्कुराएगा. उस बच्चे को एक दिन गले से लगा के भींच लो, बाकी सब रहने दो. आसान है शब्दों से दिल का दुखाना किसी का, आसान है शब्दों से दिल का दुखाना किसी का. कभी कोशिश करो किसी को हंसाने की, एक बार कभी गुस्से को पी लो, बाकी सब रहने दो. जीत है तो हार भी होगी, पर हर हार पर मौकों की बौछार भी होगी. हार के भी फिर से लड़ के जीतने का हुनर सीख लो, बाकी सब रहने दो. सपनों में जियो, खुली या बंद आंखों से. पंख पसारो और आसमान को चूम लो, बाकी सब रहने दो. मौसम की सरगोशियों में झूमो, खिलखिला के हंसो और फूट के रो लो. टूटो बनो, बन के फिर टूटो और खुद को फिर से जोड़ लो. इश्क करो, उसे महसूस की बारिश में जी भर के झूम लो. छोटी सी तो जिंदगी है, जी भर के जी लो, बाकी सब रहने दो. That was from me. Very nice. बहुत अच्छी है. Thank you. काफी Thank you. impressive भी है.
Thank you so much. I hope you guys loved it. Yes, ma'am. Great. Amazing, So ma'am. thank you so much. Thank you. Great. So I really hope कि सेशन से आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक इंसाइट मिला होगा and Yes, I ma'am. थोड़ा really बहुत wish बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा मिला है, थोड़ा बहुत नहीं, sorry थोड़ा बहुत नहीं मैम, बहुत ज्यादा मिला है, थोड़ा बहुत नहीं. okay okay I can't hear but yeah okay ठीक है. So yeah, thank you Shraddha. Yeah, off to you. Yeah. Thank you, Rashmi, for your valuable time and a wonderful session. I think students enjoyed your session. They were interacting with you. एंड जैसे जैसे मैम ने बताया ना कि हमें बहुत सारी स्किल्स है जो हमें इम्प्रूव करनी है. अभी हम लोग स्कूल से कॉलेज आए हैं, अब उसके बाद वी हैव टू जॉइन अ कॉर्पोरेट, तो देयर सर्टेन स्किल्स दैट वी नीड टू ग्रूम अप. जैसे मैम ने बताया सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज नो योर सेल्फ. हमें हमेशा हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए. स्ट्रेंथ हमें पता है तो हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमें सक्सेस जल्दी मिलेगा. वीकनेस अगर पता है तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. साथ के साथ बहुत सारी स्किल्स और भी है जिसे हमें ग्रूम करना चाहिए. जैसे हम कम्युनिकेशन की मैम ने बात करी है. कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ भी चीज हम इतने सारे सेशंस में हमने ये पढ़ा है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता तो अपने आइडिया तो थॉट्स आप अपने मैनेजर को नहीं बता पाते. अगर आप पब्लिक स्पीकर नहीं हो फिर भी आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो, अपना खुद का स्टार्टअप होता है, हर जगह आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है. एंड कम्युनिकेशन में सारी स्किल्स आती है. सॉफ्ट लिसनिंग भी आएगी, हियरिंग भी आएगी, सारी चीजें हैं. बोलने की स्किल्स के अलावा यू हैव टू लिसन ऑल्सो. ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल, जिसके लिए बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे मैम ने बताया. ठीक है, हम अगर अभी हमने ये प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया है तो वी शुड मेक अप आवर लिंक्डइन अकाउंट. अभी हम लोगों के पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं होगा तो आई शुड रिक्वेस्ट यू दैट आप लोग लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं. ठीक है, फेसबुक पे होंगे, हम इंस्टाग्राम पे होंगे, पर लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल अकाउंट जहाँ पे आप प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू और उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो. एंड स्लोली स्लोली आपका नेटवर्किंग हो जाएगा. एंड हम ऐसा कॉलेज में सेशंस भी लगाएंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ओपन अ लिंक्डइन अकाउंट. उस पर भी हम आपका सेशन कराएंगे. तो गाइज ये बहुत अच्छा सेशन था मैम का, जहाँ पे मैम ने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए. एंड आपने उनसे क्वेश्चन पूछे भी. सही, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैम आंसर दे चुकी है. एंड रश्मि, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन. एंड फिजिकली हम कभी मीट करते सेशन कराते हैं. मैम से हमने पहले भी सेशन कराया था Yes. फिजिकल मोड पे. तो बच्चा आप लोग आएंगे, आगे भी सेशंस होंगे मैम के. तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड Thank you Shraddha for मोटिवेटिंग आवर having me. स्टूडेंट्स. सो थैंक यू कैन लीव नाउ. Yeah, thank you. Yes, Thank you ma'am. everyone for the amazing Thank you, ma'am. presence and yes मैम and Thank you, ma'am. दोबारा आप Thank you, विजिट ma'am. करिए फिजिकल मोड में. हाँ, definitely I would love that and you can stay connected with me also and I've shared all the मैंने एक लिंक भी शेयर कर दिया है, वहां पर आपको मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. एंड टेक केयर, lots of love to all of you, all the best. मैम फॉलो बैक भी कर लेना. महेश वर्मा. ओके. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट लीव द क्लास. आप लोगों को मंडे को ज्वाइन करना है. मंडे को हमारा ऑफलाइन मोड पे सेशन है, मतलब ऑफलाइन ओरिएंटेशन है जहाँ पे अपने टीचर्स से मिलेंगे. एंड हमारा बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, कॉलेज की तरफ से लंच होगा. एंड आप अपने सारे टीचर्स से मिल पाओगे, अपने सारे फ्रेंड्स से मिल पाओगे जिनसे आप अभी इंटरेक्शन कर रहे हो. तो इट इज अ वेरी गुड डे फॉर यू ऑल, 11th of September. तो गाइज मैं आपसे 2 नंबर शेयर कर देती हूँ जिन जिनको क्वेरीज है. जिन जिन बेटा बार बार मैसेज आ रहा है, मैं देख लिया है. मैम काइंडली क्रिएट एन ऑफिशियल ग्रुप वेयर ओनली टीचर्स कैन SMS. ये सारे ग्रुप्स आपके क्रिएट होंगे. अभी मैं आपसे हाल फिलहाल 2 नंबर्स शेयर कर रही हूँ. फर्स्ट नंबर इज ऑफ दी आपके वार्डन सर जो है हॉस्टल के. जिन जिनको हॉस्टल में आना है उनका नंबर मैं शेयर कर देती हूँ. जिन जिनको बसेस यूज करनी है, मैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उनका नंबर शेयर कर देती हूँ. तो आप दोनों से बात कर सकते हैं. 11th को आपको कॉलेज आना है. 9:30 हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा. एंड आप स्मार्ट कैजुअल्स में आ सकते हैं कॉलेज. फिर भी आप अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस. टाइमिंग इज 9:30 to 3:30. ड्रेसेस यू कैन कम इन स्मार्ट कैजुअल्स. मैं आपको नंबर्स देती हूँ. मैंने सेंड कर दिया मैम. कौन सा नंबर शेयर कर दिया? डियर ऑल, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल काइंडली कॉन्टेक्ट. हाँ, ये नंबर आ गया ना. ये तो आया. जितेंद्र सर है हमारे हॉस्टल वार्डन है. एंड योगिंदर सर जो है हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है. ठीक है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं.
नंबर्स आ चुके हैं स्क्रीन पे बच्चा. यू कैन कम ऑन इन स्मार्ट कैजुअल्स. या मैम, बट ड्राइवर का नंबर नहीं लग रहा है. नहीं, आप ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से नंबर लीजिए ना ड्राइवर सर का. हाँ, वही दिए हैं बट कॉल नहीं लग रहा है. और नहीं लग रहा तो लग जाएगा. उन्होंने जो नंबर दिया है वो वैलिड नंबर दिया है. हो सकता है उस टाइम नहीं लग रहा हो. आप उस दिन लगाइएगा, लग जाएगा. ओके मैम. एनी मोर क्वेश्चंस? जी मैम, वो जो एडमिशन के टाइम पे वो जो एक वो रजिस्ट्रेशन वो का पेपर दिया था वो भी साथ लेके आना है? हाँ, आप लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें. मैम, स्मार्ट ये कैश. हाँ बताओ बच्चा. डॉक्यूमेंट कब सबमिट होगा, जो मार्कशीट वगैरह की वो फोटो कॉपी वगैरह ये आप सब है? लोग मंडे को कॉलेज आइए, फिर कॉलेज आके बात करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग. आपको डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके ओके मैम. ठीक है, चलो. एनी मोर क्वेश्चंस? गाइज, हमने बहुत अच्छे सेशंस किए. चारों दिन हमारे काफी अच्छे सेशंस रहे हैं. एंड आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जैसे हम अब हमें स्कूल से हम कॉलेज में आए हैं, कॉलेज से हमें कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, तो बहुत सारी स्किल्स है जिसपे हमें वर्क करना है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो चाहे पीपल स्किल्स हो. जैसे अभी जो मैम आई थी रश्मि, उसके पहले जो मैम आई थी मधुरा मैम, कल भी एक सर आए थे, तो इन्होंने सबने आपको पीपल स्किल्स के बारे में बताया. कम्युनिकेशन हो गया, आपकी पर्सनल स्किल्स हो गई है, नेटवर्क की सारी जो स्किल्स है, ये सारी स्किल्स भी हमें डेवलप करनी है. बिकॉज आज के टाइम में कंपनीज आपकी हार्ड स्किल पे तो फोकस करती है, जैसे आपकी जो डिग्रीज है, आपके सर्टिफिकेशन है, इस पे तो फोकस करती है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनीज आजकल फोकस करे, दैट इज पीपल स्किल्स. एंड पीपल स्किल्स क्या होती है? आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जो अभी हमने इतने सारे सेशंस लिए. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए हम ऐसे सेशन तो आपके कराते ही हैं, साथ में हम आपका कॉलेज के टाइम टेबल में हमने लेक्चर एम्बेडेड कर रखा है, जहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलेगी. तो ये स्किल्स आपकी इनहेंस होगी. और ये स्किल्स पढ़ाने से नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करने से आएगी. और प्रैक्टिस के लिए ही हमने टाइम टेबल में आपके लेक्चर्स लगाए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्किल्स आप में डेवलप होगी. जब आपका 4 साल का कोर्स है, थर्ड ईयर तक आप खुद ही चेंज हो जाओगे, प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाओगे. आपको अपने अपने सेल्फ में ड्रास्टिक चेंज मिलेगा. आज जब आप 11 सितंबर को आओगे और 3 साल बाद अपने आप को देखोगे, यू विल हैव अ ड्रास्टिक चेंज. तो ये सारी स्किल्स हम कॉलेज में आप में इम्बाइब करेंगे. तो जितनी ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, आपके कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आपको सीरियसली लेनी है. बिकॉज ये 3-4 साल जो आप यहाँ रहोगे, वो आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? बेटा, ग्रुप्स आपके बन जाएंगे, ग्रुप्स पे क्वेश्चन मत कीजिए. आप जब कॉलेज में आएंगे, आपको ग्रुप्स है ना, जो डिपार्टमेंट है वो ग्रुप्स में आपको ऐड कर देगा. ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस का आईडी कार्ड मिलेगा, पर फर्स्ट डे तो आप आ जाइए, धीरे धीरे प्रोसेस होंगे, आपको आईडी कार्ड भी मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए. बैग लेके आना है. देखिए, आप कॉलेज आएंगे बच्चा, आप कॉलेज आ रहे हो, फर्स्ट डे है आपका, बट आप कहीं भी जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक नोटबुक पेन तो लेके आना ही चाहिए ना. कहीं पे भी जाते हो, आप मीटिंग के लिए भी जाते हो, तो एक नोटबुक और पेन तो लेके जाते ही हो. इफ यू आर कमिंग टू द कॉलेज, आपके पास पेन तो होना ही चाहिए. पेन एंड नोटबुक वो आप लेके आइए. बाकी बुक्स आपको कॉलेज से ही मिलेगी. लैपटॉप, दैट इज अप टू यू. आपको लैपटॉप लेके आना, आप लेके आइए. दैट इज ऑल अप टू यू. बेटा, मैं तो कॉलेज में ही रहती हूँ. आई एम कॉलेज फैकल्टी. आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. आई सिट इन द पामीर ब्लॉक. आप मुझसे वहां आके कांटेक्ट कर सकते हैं. कॉलेज हमारा वाईफाई है पूरा. आपको पासवर्ड यहाँ आओगे तो पता चल जाएंगे. सैटरडेज हमारे ऑफ रहते हैं. सैटरडेज संडेज आर ऑफ. कॉलेज इज वर्किंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 3:30. गाइस, चलिए फीडबैक बताइए, कैसा रहा आपका सेशन का फीडबैक? आपको कुछ नॉलेज मिला? आपको कुछ लगा इंटरेस्टिंग? क्या आगे आपकी लाइफ पे क्या होने वाला है? अच्छा है मैम सेशन. ओके, इट वाज नाइस, ऑसम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. वेरी नॉलेजेबल, अच्छा था, नाइस सेशन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू. चलिए, मैं आपको एक कुछ लाइंस बताती हूँ. लाइंस सुना के अपने सेशन को एंड करती हूँ. नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नाउ आई वुड लाइक टू एंड दी सेशंस. थैंक यू गाइस.
Thank you for getting connected with us, for listening our session so patiently, and सारा knowledge आपने gain किया है, इसको आप लिख के रख लीजिएगा, आपके काम आएगा, नहीं तो हम जल्दी से भूल जाते हैं. So thank you. Now you can leave the session. आप meeting को leave कर सकते हैं. We'll meet you physically on 11. So all the best for 11 guys. सिलेबस हम करा देंगे कंप्लीट. सिलेबस की आप चिंता मत करो. 11th को आओ, हम क्लासेस स्टार्ट कराएंगे. सिलेबस सारा कंप्लीट होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेगी, सब कुछ होगा, सारी नॉलेज आपको मिलेगी. ओके गाइज, नाउ यू कैन लीव द सेशन. क्या हाल है? ये कौन लोग हैं जो अभी भी ज्वाइन कर रखे हैं? नमस्ते फूफा जी. नमस्ते बेटा, नमस्ते. अरे बेटे क्या कर रहे हो? और बता भाई साहब, किधर का है? बस यूपी से है भाया. अच्छा, तब तो